Mass Communication, Virtual University of Pakistan. Let's begin today's proceeding with the name of Almighty, recitation of Holy Quran. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الله الذي خلق السماوات والأرض وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم وسخر لكم الفلك لتجري في البحر بأمره وسخر لكم الأنهار صدق الله العلي العظيم. Jazakallah. All the guests are requested to rise for national anthem. The of first session is Professor Dr. Zafar Iqbal. He is Dean of Social Sciences, International Islamic University, Islamabad. Dr. Zafar Iqbal carries over 26 years of teaching and research experience. He received doctorate in mass communication, specialization in media and government relations in 2003. He served in several public sector universities and also worked on some funded projects, besides contributing a number of research papers in the reputed national and international journals. He has done his postdoctorate at the University of Surrey, UK. His works aim at exploring the negative sentiments that historically exist between Muslims and non-Muslims, and attempts to figure out the present state of hostility towards Muslims, Islam in the contemporary media-dominated world. Dr. Zafar Iqbal also operates Media Discourse channel on YouTube, where he posts his weekly debates on the state of Islamophobia in the world under the title of Islamophobia Debates with Dr. Zafar Iqbal. Today, he will talk about ethical aspects of freelance journalism and digital media. Please welcome Dr. Zafar Iqbal. It's good to see a lot many new and all fresh faces, mashallah. Definitely we'll be talking today about social media and the ethical concerns that we are confronted with, especially in this regime where you see the new media, or you can say the social media, these are gripping our life, probably every aspect of our life. We cannot have escape from social media, digital media, or at least from the digital world. In a way, we are living in a network societies these days.
I mean, the old regime or the old concepts of living in traditional systems, these are no more. We are connected with each other now. As somebody has once said, that more the media, less the communication. I mean, once you would have more media, you would be engaged through media with each other. You would have less interpersonal kind of connections with each other. And once there are, you see, less interpersonal connections. So the old regimes or themes through which we used to interact with each other, these are very fastly receding from our lives now. Now, new ways of looking at each other, new ways of developing relationships, new ways of, in fact, adopting to new things. So these we are now acquainted with, we are now probably encountered with. But of course, once that kind of situation appears, so that brings up some absolutely different kind of, you see, cultural regimes as well, cultural protocols as well, ethical protocols as well. Unfortunately, we most of the time carry with the old ethical regimes with us and living in an absolutely different environment. For instance, what we used to have when we were interacting with each other, so the regimes are, you can say, the protocols are the codes that we used to adopt in the past that were more like, you see, having interpersonal kind of relationships. So these are now very forcefully receding away, very forcefully going off from the scene. Because earlier we knew each other. We used to know each other's culture, values, and knowing each other values and cultural things, of course, that were in fact making and shaping our behavior and the way of communication. But the things have now changed. I don't know who is on the other end, who's watching me now. I really don't know that. For instance, on the face of thing that we are right now, I can see just 20, 30 persons here in this room. This meeting is being Yeah, the recorded. boundaries of this country. They people are getting exposed to that what we are discussing today. So it means that their value system and value system of people sitting in these classrooms, they all together have to be kept in view while we are to communicate with them. You see, this is something absolutely archaic to talk about some very cultural. You see, ethics or what? Ethics are products of the culture. So if cultural setting change, definitely the ethical codes will get changed. So if you are to interact with people, those who are at large available in different cultural settings, so of course, between the different set of codes are to be observed. And that makes things very complex because you are not, in fact, interacting with people, those who belong to one society, one cultural settings, or one social system. You upload something on social media and you expect that the people will be there to watch it and, of course, learn from them, whatever you are trying to communicate to them. And you expect that you are not there to violate any kind of cultural codes of those people, those who are watching you. So for that, you need to be, of course, very wise, very educated, and of course, very sensitive at the same time. That's why what we do, oh my God, he's most of the time watching Western contents. We normally, most of the time, talk to our children and say, he is getting exposed to a lot of Western contents. You see, his behavior is getting changed. He's not somehow normal for our society because he doesn't talk in your language. He doesn't observe your value system. He talks about the things that is not being practiced in our society. So we normally talk about these kind of things that have this person's less exposure, try to get him less exposed to the media which are carrying the foreign contents. So that is something very normal that we are now facing. And for a valid, or you can say a larger communication, you have to be very careful about it, that whatever you are saying, whatever you are trying to communicate to the people, that should be observing, and that should be, of course, practicing those codes which are universally acceptable. Unless we adopt the universally acceptable codes, I don't think you will get popular. I don't think the people will pay heed to whatever you are trying to communicate to them.
So get to recognize, I mean, you have to get to recognize among the people those who are far off from you, from different varying culture, different cultures. So for that, of course, it means that we have to have those language, those words, those ethical values, those things, those examples that we are trying to put into practice, are trying to communicate to the people. We have to, in fact, adopt to them before we make ourselves heard. You will not be heard if you are not keeping in view the sentiments of the people, those who could be possibly your potential clients, potential audience. So you need to understand them. You need to know them. You need to know their cultural value system. You have to blend yourself with them to be able to get heard. So these are, you see, just a few things that we have to keep in view. So it means that we have to now change the value systems, are the codes that are available with us. We have to recontextualize them. We have to redefine them. I very often talk about it. By living in a Pakistani society, I most often talk about it, more often I talk about it, that whatever we talk about in shape of, as you see, media ethics, we imbibe things from the West and try to put them into practice here in Pakistan, in our society. For that matter, I can give you a lot many examples. First example could come from objectivity. That's how you see, is a big canvas, it's a big word. If you talk about objectivity, you can write multiple books. And if somebody who's expert on this subject, I mean, in the ethics, he can probably give you a lecture for a day and a night to make you understand that what objective is all about and what could be its possible dimensions. And anything that could be objective for you could not be objective for some other people, because objectivity is so subjective in nature. So talking about objectivity is, of course, very, very complex thing. For instance, you try to be objective by posing something, getting to people know about that something. So your angle is something may not be acceptable for the people living somewhere else. As in the introduction, ma'am just said that I'm talking about Islamophobia, and especially the mediated Islamophobia. We see the Western media is not going to portray Muslims and Islam in an appropriate fashion. This is my way of looking at things. Being a Muslim, living in Pakistan, having a background of Islam and Muslims, practicing it as well. And if I say it and I see it in this way, so definitely I would be having a different feelings about it. But the one who is sitting somewhere else abroad, who is not having any background of Islam, not as a practicing Muslim, and he has no encounter at all with Muslims and Muslim societies, he would not be looking at it in that way. So taking one thing from two different perspectives, despite the fact that someone who is writing, as someone who is saying, as someone who is trying to construct something through the media, is trying to be very objective, optimal level objectivity he has observed. But still I have a lot of objections to that. Reason being, the way I'm trying to look at it, the way others are trying to look at it, because of different kind of, you see, frames to which we try to look at things, that in fact matters. So it means that we have to redefine these kind of things, which are very important and essential, especially when we are in a digital world. We are now in network societies. We are not now, I mean, the concept of society has now changed. Living here, talking in front of you does not mean that I'm not being heard anywhere. Or this would be, in fact, in a cocoon where we are sitting right now and will not leave this room. No, this is not possible now. Everything you write, everything you say, if you are exposed to media, then expect that that would be reaching everywhere. The possibility of it to reach everywhere. Information has become now a universal thing. It is no more regional, no more local, national, or international. Everything is universal now. So we have to understand that once to know that the things are universal, then it means that we have to know what are the universal value systems that we have to adopt to, so that we should be able to reach to the people, get recognized, and of course, make the whole world your client, whole world your audience. But if we will not observe to those kind of things, then the rejection rate and acceptance rate would be very. Rejection rate would be high,
and acceptance rate would be very low. So in that case, of course, we have to have certain different levels of things. I more often say this thing that profanity, for instance, जिसको हम उर्गानियत भी कह सकते हैं, लफ्जों में भी कुछ और भी. Profanity, if you take definition of profanity, you most of the time, or we most of the time, talk about it in Western style, in their ways. We just cut paste the things in our system. We never try to contextualize it. We never like to, in fact, even for our own people, de-westernize it. And our own brand that has to be given to the people and to be made understood by the people. I mean, there have not been, unfortunately, any effort. And whatever our value systems are, we never try to make them universal. This is something that I more often crib upon, because universalizing the cultural codes, the value codes, is need of the time. It doesn't mean that you are trying to expect that others will be going to teach us this thing. And it doesn't mean that at all that you will be making yourself somehow westernized. Doesn't mean at all, honestly. You more often talk about it when you talk about that you have to make your value system acceptable for the world. It doesn't mean that you are to westernize yourself. You are to modernize yourself. But at least we have to do certain things which make our value systems, or at least the meanings attached with those value systems, acceptable for the whole world. Imandari kya hai? Why I try to translate imandari, dhyanatdari in my own way. For the word imanatdari, dhyanatdari has different meanings. To make our concept of imandari, dhyanatdari somehow acceptable for the world, we have to redefine it according to the international context. इसी तरीके से मैं जैसे आपको प्रोफेनिटी की या pornography की बात कर रहा हूं, तो so many things which are not considered as profane in the West and somehow obscene in the West, these are considered absolutely objectionable in our society. है ना? कितनी examples दी जा सकती हैं? तो अब क्या, can we make a blend of it? Can we redefine our things? And can we make word understand our meanings of the things that we adopt to? For example, haya की कोई definition है? आप पैमरा कोड ऑफ एथिक्स उठा के देखें, तो पैमरा कोड ऑफ एथिक्स में they are more concerned with it that there should not be anything which is obscene. This meeting is being recorded. obscene भी नहीं है और हया भी नहीं है. कितनी चीजें ऐसी हैं जो मेरे ख्याल के मुताबिक आप रोजाना टेलीविजन पे देखते हैं, और बच्चों को आप फिर कोशिश करते हैं कि they should not get exposed to those kind of things. Maybe sometimes talks. आप अगर वैसे भी बहुत सारे ड्रामों को अगर आप एनालिसिस करने की कोशिश करें तो आपको अंदाजा होगा. तो प्रॉब्लम बेसिकली लाइज वेयर? प्रॉब्लम लाइज हियर कि हम अपने कुकून से बाहर नहीं निकल के सोच रहे, जो कि अब इस मॉडर्न डिजिटल टाइम्स के अंदर हमें बाहर निकल के सोचने की जरूरत पड़ेगी. We have to have universalized definitions of things because we are now living in a different world. मैं आपको चंद एक एग्जांपल्स ऐसे दूं जो आप हैरान रह जाएंगे. आपके यहां या हमारे यहां the things which are not considered somehow objectionable, world has very stringent laws about them. World has very stringent laws about them. For instance, मैं पीटीवी की एग्जांपल देता हूं. समझौता एक्सप्रेस एक ड्रामा लगा था पाकिस्तान में जिसमें सिखों को भी दिखाया गया था. And for us, this is something very normal to ridicule a Sikh. आओ जी सरदार साहब आ गए हो, की हाल ने थे. फौरन हम पंजाबी जो पंजाबी नहीं भी हैं उनके साथ पंजाबी बोलने की कोशिश करते हैं. Why do we do anything like that with them? Why do we do? कोई पश्तून मिलता था, हमसे कहते ओ खान साहब संगे कैसे हो, ठीक हो. हमारी उर्दू तब्दील हो जाती है खान साहब की निस्बत से. Why do we do anything like that?
And that is something Namalam, the one who we are addressing to, even he does not understand that something is being ridiculing for him. और किसी जगह पे रेसिज्म का कॉन्सेप्ट यहां पे आया, इन्वॉल्व है शायद। जब समझौता एक्सप्रेस यहां से पाकिस्तान में इस तरीके से किसी सिख के हवाले से जो ये इस किस्म की बातें हमने कहीं इस किस्म के स्टाइल में किसी चीज को दिया, तो हमारे पीटीवी को बड़ा हैवी जुर्माना पे करना पड़ा यूके में। अपने ये जो पीटीवी वर्ड वाला सिलसिला है, हैवी जुर्माना पे करना पड़ा क्योंकि ऑफकॉम ने, ऑफिस ऑफ कम्युनिकेशन यूके ने उन पे ये जुर्माना डाल दिया था। पीटीवी हैड टू पे इट। दिस इज वेरी रेसिस्ट रिमार्क्स। और पाकिस्तान में कितने देर तक वो चला, प्लॉट किया गया, सबने पसंद भी किया, और उसके काफी देर बाद जाके वो रीटेलीकास्ट हुआ था, और हमें यहाँ पे किसी को कोई महसूस नहीं हुआ था कि समथिंग हैज बीन रिडिक्यूलिंग, समथिंग दैट हैज बीन peculiarly addressing some cultural traits of an individual or a community or an ethnic group. We did not feel anything bad in there. That's what we do in our programs, entertainment gala के अंदर। नजर आते हैं ना आपको कितनी जगहों पे हमने मुख्तलिफ लेवल पे ये काम, आप अभी मेरी इस बात के साथ आप टीवी ड्रामों को अगर आप देखें तो उसमें आपको किस किस जगहों पे क्या क्या फॉर्म के अंदर ये चीजें नजर आती हैं। खान साहब आप ये कर दो, है ना, और किसी और के मुतालिक हम कुछ और लफ्ज बोल रहे होते हैं। Why? वेस्ट के अंदर रेसिज्म पे बड़े सख्त लाज हैं, और अगर हम इस चीज को यहां पे इसी तरह से कहेंगे, कंट्रीब्यूट करेंगे, तो फिर क्या होगा? For instance, somebody from Pakistan is saying that thanks God we don't have any racism. Why? Because we don't have blacks in Pakistan. वेस्ट के अंदर तो रेसिज्म ब्लैक्स और व्हाइट के दरमियान में चल रहा है ना, उनके यहां तो ये इंटरप्रिटेशन है। And we say, thanks God we don't have blacks in Pakistan. इससे बड़ी racist statement और क्या हो सकती है? He could be hanged if he has been in the West and saying anything like that. तो मैं ये समझता हूँ, देखिए ना, अब ये वो चीजें हैं, by giving you certain examples you would be trying to now understand that what did I say earlier, कि हमें इन चीजों को जरा सा रिकंटेक्चुअलाइज करने की जरूरत है। हमारी हर एक चीजें या उनकी भी हर एक चीजें अपने सिस्टम के मुताबिक कंटेक्चुअलाइज करने की जरूरत है, डीवेस्टर्नाइज करने की जरूरत है, इंडिजिनाइज करने की जरूरत है, और इसी तरीके से जो हमारी चीजें हैं उनको यूनिवर्सलाइज करने की जरूरत है। ऑनेस्टली जब तक ये चीजें नहीं होंगी, हमारी एक्सेप्टेंस दुनिया के अंदर एक बड़ी यूनिक आइडेंटिटी के तौर पर रहेगी। वी विल नॉट बी इन फैक्ट इन गेटिंग एम्बेडेड विद द सिस्टम व्हिच इज एक्सेप्टेबल फॉर द वर्ल्ड। तो फिर क्या होगा? अल्टीमेटली we will be talking with each other about the problems which are of international nature. The world would not listen to you. And this is what happening now. मैं अपने मसाइल आपस में डिस्कस कर रहे हैं एक दूसरे के साथ। How many of us are internationally heard? How many of us are internationally heard? Official sources भी हम पूरे तरीके से, जिसे आप कह सकते हैं, नहीं सुनवा पा रहे दुनिया को। वजह सिर्फ और सिर्फ वो चीजें हैं जो हमने अभी तक यूनिवर्सलाइज ना करने की कोशिश नहीं की। तो ये इंस्टीट्यूशंस हैं, इनके अंदर बैठ के हम इस किस्म की चीजों को जरा यूनिवर्सलाइज, क्योंकि वी आर लिविंग इन एन एब्सोल्युटली डिफरेंट वर्ल्ड नाउ। दिस इज नाउ अ डिजिटल वर्ल्ड। वी हैव टू हैव certain things which are very important for all of us to understand, and then you see develop our system of whole code of ethics within them. आज आप थोड़े से इस लिहाज से देखें कि हमारे यहाँ जो एथिक्स की कोड्स हैं, वो आज भी जिस जगह पे हम इस वक्त खड़े हुए हैं, आज भी हमारे मीडिया की कोई अग्रीड अपॉन नहीं है, अनफॉर्चुनेटली। Even today, the code of ethics given by CPNA is different than the code of ethics given by PAMRA. And when we talk about code of ethics, we talk about only one thing, and that is about the content only. This whole word that we call as the digital word is not only content, even media itself is talking to you. Marshall McLuhan ये कह रहे हैं कि media itself is a message for you. Try to understand this. हमेशा हम कंटेंट की बात करते हैं, इसके साथ जो पूरे सिस्टम है, इसकी वजह से क्या हो रहा है? For you to prick your mind, I'm saying this thing. You know, only a few of us are savvy on this, that there is some money that one can earn through YouTube. है ना? Least paid है दुनिया के अंदर हम. Least paid. You get $1 for 1,000 clicks. But in America, 100 clicks and $1.
Why? Are their contents better than yours? Why this kind of, you see, apartheid kind of thing? This is a discrimination and part of an international organization. Living in a digital world, how unethical thing is there on their part and nobody is raising any voice. And that should have been, of course, done by the state. You're not paid for the contents that you are trying to put on Facebook. Whole world is being paid for that. Indians are getting paid a lot of things, a lot of money because of things that they put on social media like Facebook. आपको पैसे क्यों नहीं दे रहा? आप क्यों प्रोग्राम चलाते हैं 80,000 लाख 2 लाख कितने लोग हैं? Why you are not paid for the spaces that you create on Twitter? The whole world is being paid for it. मुझे यकीन है कि आप में से बहुत सारे लोगों के लिए बात नहीं होगी. You are not paid for it. You are paid for only one, that is YouTube. और वो भी मैंने आपको रेट बता दिया इसका. Why? Are we not so ethical that the world should be able to accept? Are we generating those contents which are you see lesser in terms of its significance for the world? What are the reasons that we are being less paid? So many. You see, इस किस्म की चीजों को अगर आप थोड़ा सा एक्सप्लोर करने की कोशिश करें तो आपको बड़े जो है ना वो कंसर्न्स नजर आएंगे जो हमें यहाँ इस डिजिटल वर्ल्ड के अंदर नजर आ रहे हैं. और उसके लिए क्या एफर्ट्स हैं हमारी तरफ से, हमारे गवर्नमेंट की तरफ से, हमारे जो मुख्तलिफ इंस्टीट्यूशंस हैं. वी आर नॉट सेवी ऑन देम वर्चुअली. ऑनेस्टली मैं ये बात कर रहा हूं. We don't know it. That's why the people, those who are up there, those who can raise voice for you, they are least bothered about it. They might not be knowing it. If they are knowing it, of course, we are not pushing them to talk about it. इसलिए फिर क्या होता है कि जब वो हमारी किसी भी लेवल की एथिकल वायलेशन करते हैं तो we simply can say a few who and cry. रोड्स पे आ जाते हैं. We enchant a few slogans and that's it. उसका हमें ही नुकसान होता है वर्चुअली. कोई फायदा नहीं हो रहा होता उसका, हमें ही उसका नुकसान हो रहा होता है. और दुनिया इस चीज को भी वो इस फॉर्म के अंदर ले रही होती है कि लुक एट देम दैट हाउ दे आर ट्राइंग टू रिएक्ट टू दिस काइंड ऑफ थिंग्स. अब आप इसका मतलब है एनीबॉडी हु इज सिटिंग इन यूनाइटेड स्टेट्स इन अ वेरी शेपी किचन, अ क्रैप कंप्यूटर ही हैज in front of him and he knows some kind of, you see, animation makes a bad thing about you, about your society, about your leader, about your Prophet sallallahu alaihi wasallam. He plays that up and then the whole world is shouting against him, the one who even not known by even Americans, but to talk about us. That makes millions of rupees because of things like that. होता है ना ये? तो ये कितनी जगहों पे ऐसा हो चुका है. तो मेरे ख्याल के मुताबिक हमें ऑल टुगेदर एक डिफरेंट सेट ऑफ कोड्स की जरूरत है. इंफॉर्मेशन अब ये नहीं रही कि ये टीवी की इंफॉर्मेशन है, ये रेडियो की इंफॉर्मेशन है, ये अखबार की इंफॉर्मेशन है, ये सोशल मीडिया की इंफॉर्मेशन है. इंफॉर्मेशन आर नो यूनिवर्सल. द पॉइंट, इंफॉर्मेशन इज नो यूनिवर्सल. वंस देयर आर यूनिवर्सल इंफॉर्मेशन सिस्टम, then there should be universal codes of conduct as well. यूनिवर्सल कोड ऑफ कंटेंट्स के दो इंपॉर्टेंट जो अब तक मैंने बात की है पैराए हैं. पहला ये कि आप अपने इंडिजिनस यूनिवर्सल कोड्स को यूनिवर्सलाइज कैसे कर सकते हैं. पहला पॉइंट यहां पे ये बना. दूसरा पॉइंट इस पे ये बनता है कि जो यूनिवर्सल या वेस्टर्न कोड्स है उनको आप री और डीकंटेक्चुअलाइज कैसे कर सकते हैं ताकि आपके सिस्टम के लिए वो एक्सेप्टेबल हो. ये हमारे लिए दो इंपॉर्टेंट टेकअवेज हैं जिन पे हमें बात करने की, सोचने की, समझने की जरूरत है. और उसमें ही मजीद हमारी आज की इंशाल्लाह ताला डिस्कशन रहेगी जिसमें मैं आपको इसके हवाले से मुख्तलिफ लेवल पे चीजों को बताने की कोशिश करूंगा. अच्छा, अब यहाँ पे जो हमारे लिए ये बहुत सारी बातें तो मैंने खैर आपसे अभी कर ली. जो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं, हम सिर्फ इन्हीं की बुनियाद पे ही अपनी चीजों को आगे लेके जाएंगे. ये यूनिवर्सल चीजें हैं जिनको आप कह सकते हैं कि रीडिफाइन करने की जरूरत है फॉर आवर ओन अंडरस्टैंडिंग, फॉर आवर ओन प्रैक्टिस. 5-6 हैं, ज्यादा नहीं है ये. जैसे हमारे पास है ना कि आप 25 कोड ऑफ एथिक्स और 25 किस्म की आपकी ये चीजें नहीं.
आपके पास सिंपली चंद एक चीजें हैं जो कि कैनन्स ऑफ जर्नलिज्म पहले भी वो तस्वर की, वो बड़े जिसे आप कह सकते हैं यूनिवर्सली एक्सेप्टेड चीजें हैं। अब इस पे कोई नहीं कह सकता कि ट्रूथ है, एक्यूरेसी पे कोई कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट माई ट्रूथ एंड योर ट्रूथ आर टू डिफरेंट थिंग्स। वी नीड टू अंडरस्टैंड दिस थिंग। यू सी, my truth and your truth, truth of the people sitting here and truth of the people those who are sitting far off from you, that might be different. अब इसका मतलब ये है कि हमें ट्रूथ को रीडिफाइन करना पड़ेगा। आपका सच और मेरा सच मुख्तलिफ हो सकता है। आपका सच ये है कि बलूचिस्तान में जो कुछ हो रहा है वो ठीक हो रहा है, और बलूचिस्तान के लोगों का सच ये है कि जो कुछ यहां हो रहा है वो गलत हो रहा है। अब सच है क्या? अब सच है क्या? इसका मतलब यह हुआ कि इस सच को हमें तलाश करने की जरूरत है। इस सच की क्या बात होगी, इस सच को हम कैसे समझेंगे? सच को फिर अगर हम डिफाइन करने की कोशिश करें या सच को हम समझने की कोशिश करें तो मुझे इस पे सीपी स्कॉट का एक बड़ा जुमला मशहूर सा याद आता है, जो उनके अखबार द गार्डियन में भी हमेशा हेड पे लिखा हुआ होता है, और आप सबने भी सुना हुआ है, मुझे यकीन है। Facts are sacred, comments are free. Facts are sacred. Facts. Once you opinionate facts, once you editorialize facts, once you hide certain aspect fact and leave other facts for the people consumption, then this is adulteration of facts. That is a kind of, you see, blasphemy of concepts of fact, honesty. फैक्ट ये नहीं है कि हमारे दोस्त खड़े हुए और कैमरे में यहां पे ये लगाएं और मैम को ही सिर्फ और हम दो ही नजर आए कि डॉक्टर जफर इकबाल इज टॉकिंग टू ओनली वन पर्सन थ्रू दिस public address system. If he focuses on of us by putting, you see, a kind of blanket on all of you, तो फैक्ट तो ये है, but this is half truth. The whole truth is that we all are in this classroom and interacting and talking about something like, you see, ethical values in a digital world. Whole truth जब तक नहीं होगा, उस वक्त तक जो आपका हाफ ट्रूथ है उस की वैल्यू डिजास्टरस की फॉर्म के अंदर सामने आ सकती है, वो शायद कोई बेहतर फॉर्म के अंदर सामने ना आए। और हमारे साथ आज किसी भी दुनिया के मीडिया को अगर उठा के देखें तो यही बात सबसे ज्यादा नजर आती है हमें कि ट्रूथ और एक्यूरेसी, ये दीज टू आर वेरी इंपॉर्टेंट एंड वैल्यूएबल थिंग्स, बट द प्रॉब्लम इज दैट वी हैव टू रीडिफाइन इट फॉर आवर ओन थिंग्स, दैट हाउ टू डिफाइन ट्रूथ। बिकॉज ऑब्जेक्टिविटी का सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट क्या है? ट्रूथ। यू हैव टू कन्वे ट्रूथ and you have to be accurate in giving the facts. तो भाई आप accurate कैसे होंगे? आप एक वक्त में गलत भी नहीं है लेकिन पूरे सही भी नहीं है, तो हम ये दरमियान वाली कोई शेप से दरमियान में से निकालते हैं, और ये हमारे लिए, जैसे आप कह सकते हैं पूरी दुनिया के लिए, हम सब के लिए सोचने की जरूरत है कि कैसे हम इसको बेहतर फॉर्म के अंदर लाएं। नेक्स्ट, ऑफ कोर्स जब तक आप इंडिपेंडेंट नहीं होंगे। इंडिपेंडेंट क्या है? freeing you from editorial, you see, jurisdictions, freeing you from your social obligations, freeing you from, you see, my inside patriotic feelings about certain things, putting something up and playing down certain things. Independence is what? In fact, freeing you from all kind of, you see, oppressions that are there. Most of the time we are unable to understand those oppressions honestly. मुझे पता ही नहीं होता कि मैं I'm being oppressed because of the things that are around me. Because I'm trained, I'm part of the system, and that system is in many ways trying to, you see, make me behave in a certain way, in certain fashion. तो फिर क्या होगा? That's my duty, being a Pakistani, being a Muslim, being a man, because of a woman, ये मेरी responsibility है। तो इंडिपेंडेंस फिर लैक करना शुरू हो जाती है। आपके मुल्क की भी, आपकी एसोसिएशन की भी, आपके रिलीजन की भी, आपके जेंडर की भी, आपके सोसाइटी की भी,
कितनी ही चीजें हैं दोज हु मोस्ट, जो मीडिया सोशियोलॉजी है, जो एक बड़ा स्कूल ऑफ थॉट है पूरा मास कम्युनिकेशन के बैकग्राउंड के साथ, जो भी हैं बच्चे ज्यादा बेहतर समझते होंगे। मीडिया सोशियोलॉजी भी एक बड़ी बात ही यही करता है कि हाउ डज अ कंटेंट अपीयर इन अ वे इट डज, बिकॉज देयर आर सो मेनी थिंग्स दैट इंटरेक्ट एंड अफेक्ट सम कंटेंट टू फाइनली गेट अपीयर ऑन मीडिया। ये ऐसा नहीं होता है कि कोई कंटेंट ऐसे आपको हेडलाइन देते हैं और हेडलाइन बन जाती है। The whole personality who's trying to make a content appear, the whole system under which you are trying to make systems, you are trying to make thing appear in a system, the whole society that in which you are living, that are all directly or indirectly interacting with you, forcing you, making you dependent on them to be careful about their needs before you say anything, before you write anything. मैं यहाँ पे आते हुए अच्छा मैं वर्चुअल यूनिवर्सिटी में कह रहा हूँ मुझे ये बात कहनी है और मुझे ये बात नहीं कहनी, मैं पाकिस्तान में खड़ा हूं मुझे ये बात कहनी है और मुझे ये बात नहीं कहनी, मैं अमेरिका के अंदर खड़ा हूं मुझे ये बात कहनी है और मुझे, you see these are all the indirect kind of, you see, oppressive things that everybody has to face before they say anything. Acha, this is one side of the picture. I'm not trying to make anyone so independent where he or she is completely free, no you see kind of restrictions, whether psychological, physical or policy level restrictions are there. सफा मेरी मजबूरी होती है। वाई, मैं एक कोट करता हूं टिन स्टॉल की एक बड़ी खूबसूरत स्टेटमेंट, आप यकीनन सारे ने सुनी हुई होगी। मीडिया आर अमेरिकन्स, उसने कहा था मीडिया आर अमेरिकन्स, उसने ये नहीं कहा कि मीडिया आर फ्रॉम अमेरिका। दिस अमेरिकन इज एन एडजेक्टिव है ये, अमेरिकनाइज्ड है ना। मैं अक्सर रिसर्च में भी जब थीसिस वगैरह को देखता हूं मैं कहता हूं पाकिस्तानी मीडिया नहीं, मीडिया फ्रॉम पाकिस्तान। पाकिस्तानी मीडिया करते हैं तो इसका मतलब है कि मीडिया दैट हैज पाकिस्तानियत इन इट इज कॉल्ड पाकिस्तानी मीडिया। ये जो रिसर्च के स्टूडेंट्स हैं डॉक्टर साहब और अजहर सुमरा, बाकियों को मैं नहीं जानता तो शायद वो भी हों, हम अक्सर औकात जो है ना पाकिस्तानी मीडिया लिखते हैं ये लफ्ज, तो पाकिस्तानी मीडिया कोई नहीं होता, मीडिया फ्रॉम पाकिस्तान होता है। बिकॉज वी डू नॉट, मीडिया आपस में देखें कहां पे हमारे यहाँ पाकिस्तानियत। अब यहाँ पे जो इंडिपेंडेंस की कॉन्ट्रा में बात कर रहा हूं, उसके मुखालफत में पहले उसके फेवर में बात कर रहा था, उसके अब मुखालफत में दूसरा पहलू है वो देने की कोशिश कर रहा हूं कि समटाइम्स वेयर एवर यू आर लिविंग एज द अमेरिकन्स डू, that you have to protect first the interest of the American people before you say anything. If they are protected, you are allowed to say it. If they are not protected, you are restricted. इसलिए वो उनके बारे में क्या कहते हैं, मीडिया आर अमेरिकन्स। लेकिन मैं उसे आजकल मैं ये कहता हूँ नो, मीडिया आर Jewish. They are not even Americans because you see Jewish whole lobby is controlling all media conglomerates in the United States. Media are no Jewish because the Jewish policy, if you want to see more and dig more on that, तो मैं आपको ये कहूंगा कि the war you don't see, एक वीडियो है, एक डॉक्यूमेंट्री है, द वॉर यू डोंट सी बाय जॉन पिल्जर, एक वॉर कॉरेस्पॉन्डेंट है। आप इस वीडियो को देखें, टेक इट एज अ ट्रीट फ्रॉम माय साइड ऑनेस्टली। मैं कोई मलिक रियाज नहीं हूं कि प्लाट में प्लाट दूंगा ट्रीट में, तो मैं एक टीचर हूं, तो मैं आपको इसी किस्म की ट्रीट दे सकता हूं। टेक अ ट्रीट फ्रॉम माय साइड फॉर दिस वीकेंड टू वॉच दिस। I hope you will love it and you would then be able to understand that why do I call that the media are Jewish and the media are Americans. Because the 5 media conglomerates that are now controlling the more than 80% of the world media, information, every kind of media is not... अच्छा, ये बात भी थोड़ा ध्यान में रख लें बच्चों कि जब हम मीडिया की बात करते हैं, कंटेंट की बात करते हैं, तो हमारे जहन में सिर्फ और सिर्फ जो है ना वो इंफॉर्मेशन मीडिया आता है। They are only the 20% of the total chunk of media, honestly, the whole of media rather. 20% जो है ना ये जिसको हम CNN कहते हैं, BBC कहते हैं, और ये हमारे जो आपको 32-33 चैनल नजर आ रहे हैं, they're only 20% of the total information media. 80% आपके पास डिफरेंट मीडिया है जो आपके इंफॉर्मेशन के लिए है, जो आपकी फिल्म है, जिसमें आपके पास थीम पार्क्स हैं, जिसमें आपके पास बुक्स हैं, जिसमें आपके पास ये सोशल मीडिया भी आ जाए। ये सारे मिला के आपके 80% बनते हैं, you know,
and we are most of the time concerned with the 20% chunk of the media whole. उसी के मुतालिक ज़्यादा कंसर्न होते हैं, उसी के मुतालिक ज़्यादा बातें करते हैं, जबकि वो इस 80% के हवाले से we are least bothered, honestly. I don't know what kind of psychology we have developed over a period of time, that we are, you see, how much do I consume information every day, or if you take it on weekly basis, and how much other media that I consume. आप सिर्फ अपने एनालिसिस कर लें तो फिर भी आपको समझ आ जाएगी. मुझे यकीन है कि इसका अगर हम एग्रीगेट निकालेंगे तो वो जो 80% वाला है वो वाकई आपके 80% का टाइम और अटेंशन आपको लेता हुआ नजर आएगा. बट अनफॉर्चुनेटली वो जो ज्यादा पब्लिसाइज्ड होता है वो ज्यादा नजर आ रहा होता है, जो कम पब्लिसाइज्ड होता है वो होता ज्यादा है लेकिन नजर नहीं आ रहा होता. प्रॉब्लम हमारे साथ सिर्फ और सिर्फ यही है, और दैट्स व्हाट द मीडिया इज ऑल अबाउट. ऑनेस्टली वी ट्राई टू पब्लिसाइज, गेट मोर रेटिंग अबाउट थिंग्स, तो फिर हम एथिक्स को इरोड करते हुए, सब चीज़ों को ख़त्म करते हुए हम सिर्फ और सिर्फ रेटिंग के जंग में इन सारी चीज़ों को ख़त्म करके जा रहे होते हैं. तो जो इसकी कॉन्ट्रा साइड है ना इंडिपेंडेंस के, वो डेफिनेटली ये है कि हमारे लिए कुछ ऑब्लिगेशंस बीइंग एन इंडिविजुअल एंड बीइंग द वन हु बिलोंग्स टू एनी इंस्टीट्यूशन, तो हमारे कुछ वो ऑब्लिगेशंस भी होती हैं. इट्स नॉट ओनली द प्रोफेशनल ऑब्लिगेशंस दैट वी हैव टू फुलफिल. That being a professional does not mean that you are not a Pakistani, you are not a Muslim, you are not a male, you are not a female, you are not a children. आप इसके अलावा ये नहीं कर सकते कि आप ये सब चीजें नहीं हैं और आप सिर्फ प्रोफेशनल हैं. Although the very sophisticated and probably the altruistic definition of what we call it as the professionalism is that keeping yourself or freeing yourself from all kind of except the one that is in fact the profession shapes you. हम आमतौर पर इसकी बहुत यूफेमिस्टिक या ऑल इनकम्पासिंग डेफिनेशन, एक बड़ी आइडियलिस्टिक डेफिनेशन की तरफ हम जाते हैं, तो उसमें अपने आप को फ्री करना इन सब चीजों से और प्रोफेशन की डिमांड्स को पूरे करते हुए आगे बढ़ना प्रोफेशनलिज्म है. लेकिन ऑफ कोर्स कोई भी प्रोफेशन किसी एक सिस्टम के अंदर ऑपरेट कर रहा होता है, एंड सिस्टम गवर्न्स द इंडिविजुअल. ऐसा नहीं होता कि आप किसी भी गवर्निंग सिस्टम के बगैर चल रहे हो. अच्छा, नेक्स्ट क्या है? फेयरनेस एंड इम्पार्शियलिटी. ऑफ कोर्स हम बड़ी बात करते हैं, मैं इसमें शायद कुछ भी नई बात आपके सामने ना करूं. दिस इज एन एक्सपेक्टेशन फ्रॉम एन इंडिविजुअल हु इज ट्राइंग टू पुट एनीथिंग ऑन मीडिया, राइट समथिंग, से समथिंग, प्रोड्यूस समथिंग. तो उसमें आप यकीनन इस चीज को रखते हैं, यू हैव टू बी इम्पार्शियल विदाउट फेवरिंग एनी पर्टिकुलर साइड एंड अपोजिंग द अदर वन, और फेवरिंग वन द अपोजिंग द अदर. इसके अलावा आप ऐसे, जैसे आप कह सकते हैं ना कि जैसे घोड़े के आगे ब्लिंकर्स लगा देते हैं ना, तो यू आर, घोड़ा जो है ना वो सिर्फ आगे ही देख सकते हैं, इर्द गिर्द की चीजें कुछ हो रहा है उसको नजर नहीं आ रहा था. तो बीइंग अ प्रोफेशनल यू हैव टू हैव ऑफ कोर्स दिस काइंड ऑफ ब्लिंकर्स इन फ्रंट ऑफ यू, सो दैट nothing should intervene into your affairs, nothing should affect and in shape of fear and favor. यहां से कोई डायरेक्शन आ रही है, वहां से गन दिखाई जा रही है और वो आपको फोर्स कर रहे हैं कि आप कुछ लिखें और आप कुछ प्रोड्यूस करें. So if you would like to be professional, you would like to be following ethics and high ethical standards, then of course you have to have these kind of, you see, things always in front of you, with you, ताकि आप impartial भी रह सकें और fair भी रह सकें. Being a professional, being ethical means being humane. Please mind it. Being professional, being ethical doesn't mean being humane, because everything ultimately do for what? For the people. Everything that we do is for what? It's for the people. And if we are not humane, then it means that we are not doing things for the human beings, for the people. तो इस चीज को जहन में हमेशा रखने की जरूरत है. अब इसके पीछे जरा मैं इसका कैनवस ब्रॉड करता हूं. इसके पीछे क्या चीज है? एनीथिंग दैट कैन हार्म यू, एनीथिंग दैट आई स्पीक आउट, टॉक अबाउट, इज देयर टू क्रिएट हार्म्स इन द पीपल, अमंग द पीपल, इन द सोसाइटी, दैट हैज टू बी ऑफ कोर्स कट डाउन इमीडिएटली. डोंट से एनी हेट स्पीच. अब आप जाए ना इसके अंदर ब्रॉड करना. हेट स्पीच, anti-humane. You say something bad about some person, about some community, this is a hate speech. Anything that can incite violence, of course, is a potentially dangerous thing. Don't do it. You're not going humane by saying anything which is in fact
problematic for the community, for the people. You see, there has been a huge debate in the West. We are belonging from a very underdeveloped society where debates are no more there, unfortunately. Probably it has never been. तो इस वजह से मैं नो मोर वाला का वापस ले लेता हूँ अपना सेंटेंस. जहां पे डिबेट्स होती हैं वहां पे ये बातें बड़ी अहम होती हैं. क्या राइट है आपको, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन क्या है आपकी. अमेरिकन ने बड़ी इस पर काम किया. यूरोप ने खैर उससे पहले बड़ा काम किया. अमेरिकन ने फॉर एग्जाम्पल आज से 150 साल पहले अपने फर्स्ट अमेंडमेंट में डिबेट्स के रिजल्ट में ये कर दिया था. उन्होंने 5, वो बिल ऑफ राइट्स था, 5 मेजर राइट्स थे, उसमें से एक राइट उनका ये था कि कांग्रेस शैल मेक नो लॉ. मैं उसका जो फर्स्ट अमेंडमेंट है उसका एक सेंटेंस पढ़ रहा हूं. वो 5 डिफरेंट राइट्स की बात कर रहे हैं. कांग्रेस शैल मेक नो लॉ abridging the freedom of press and speech. मेरा ख्याल एक्सप्रेशन के लफ्ज है, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन. स्पीच का नहीं कहा था, एक्सप्रेशन था. कांग्रेस शैल मेक नो लॉ abridging the freedom of press and expression. अब इसका मतलब है कि कोई लॉ नहीं बन सकता जो आपको फ्री होने से बचाए. There are restrictions there. ह्यूमन की ब्रॉडर कॉन्टेक्स्ट में बात करो तो फिर ये बड़ी डिबेट हुई कि यार ये कैसे मुमकिन है. I can say any damn thing without caring for it whether it will hurt anybody. So I'm no more humane. It means that I'm so free. I can say anything. तो किसी के इन अ होल किसी कम्युनिटी के सेंटिमेंट्स खराब हो सकते हैं. My speech can erupt some kind of violence in the society. So what kind of freedom is that can cause some kind of problematic things in the society? So there was, of course, then a huge debate, and they had a lot many instances they could quote that this kind of freedom, which is totally unbridled, when it is said in the Constitution that Congress shall make no law, whatever, abridging the freedom of expression and freedom of media or freedom of press. तो फिर क्या होगा? अब देखिए, कहीं जाके 100 साल के बाद, 100 साल की डिबेट के बाद में बात कर रहा हूं, sometime in 60s, वहां पे ये बात होती है कि ये कोई ज्यादा मुनासिब बात नहीं है, फ्रीडम हो, लेकिन इस तरह से टोटली अनब्राइडल फ्रीडम नहीं हो सकती. There are certain ethical value systems that we have to keep in view before saying anything. इस पे सोचें. अब जैसे फॉर एग्जाम्पल दे हैड गिवन एग्जाम्पल, इफ दिस इज अ वेरी स्मॉल रूम एंड दिस रूम इज कंप्लीटली packed with people and people of different ages. Girls are there, males are there, kids are there, older people are there. If they are all there and I'm saying, oh my God, immediately come out of this room because there is a bomb and that is about to blast. What would happen? We will all rush to this gate. And this is a small gate, smaller than this one, what we have now. क्या होगा? Stampede. The weaker would get crushed. शायद बम ना फटे लेकिन आप उधर फट जाएंगे. बम से किसी को तकलीफ ना हो, लेकिन कोई बच्चा जो निकल रहा है, कोई कमजोर औरत है या कोई बूढ़ा है, उसको तो प्रॉब्लम आ गया ना. तो इसका मतलब है कि अगर मैं कोई ऐसी बात कहता हूं और झूठ कहता हूं, मैं कहूं कि दिस इज माय फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, आई कैन से एनी डैम थिंग, एंड इफ आई कॉल दिस थिंग दैट ओ माय गॉड देयर इज अ बॉम्ब इन दिस रूम, immediately come out. So you, without looking at it, without assessing, completely evaluating and investigating my talk, my speech, you act upon that, which is of course very natural reaction. yahi hoga na. But what would happen? This would be the result. Stampede, hangama, ye iska result hoga. May I be given this kind of, you see, freedom to say any bullshit like that? Sorry, using this word. May I be given this freedom? इमरान खान जैसे अभी आजकल सिलसिला चल रहा है, ज़ेबा ने सीख नहीं किया, फलांस को हम नहीं छोड़ेंगे, और पब्लिकली दो बंदों के दरमियान तो अलग बात है ना. One is public speech. So can you say anything like that? So you see, there are a lot many followers of Imran Khan, and if Imran Khan says something like that, Chima is not doing good, DIG is not doing good, and Zeba is not performing well, she is anti-PTI. Oh my God, me being the one who is staunch supporter of Imran Khan, who chew everything that he said without
प्रॉपरली, यू सी, उसको प्रोसेस किए बगैर उसको हजम कर लेते हैं। तो मैं तो फौरी तौर पर पत्थर उठा लूंगा, बम होगा तो वो उठा लूंगा, उनको कहीं पत्थर मारूंगा, क्या होगा? शी इज इन प्रॉब्लम, सीमा इज इन प्रॉब्लम। तो आपको तो फ्रीडम है, लेकिन वो फ्रीडम किसी के लिए बहुत खतरनाक बन रही है, क्योंकि आपके तो बड़े फॉलोअर्स हैं। खुमैनी ने फतवा दिया था कि जो भी सलमान रुश्दी को मारेगा उसको पैसे मिलेंगे, और उसको हलाल है मारना, उसको हलाल है। और किया अभी, आप मेरे साथ सोशल मीडिया पे नहीं, अदरवाइज आई हैड अ डिबेट ऑन दैट। तो उसे क्या हुआ, न्यूयॉर्क में वो बंदा वहां पे सलमान रुश्दी, आई डिसलाइक सलमान रुश्दी, मेरे बड़ी टॉक्स, मेरी किताबें भरी हुई हैं इन चीजों से जो मैं बात करता हूँ। अजहर सुमरा शायद हो सकता है आपको बेहतर इसके बारे में बता सके। I spoke a lot against him, but I never support this thing that he should be killed openly. इसलिए कि इससे मुसलमानों को जो नुकसान हो सकता है उसका आप अंदाजा नहीं कर सकते। वो बंदा गया, उसने जाकर उसको स्टैप करना शुरू कर दिया, गर्दन में मारना शुरू कर दिया। वो किसी साहब ने उसमें मतलब फतवा दे दिया था। तो आई मीन स्पीच is I mean, to express yourself is a very important right that has to be protected under the laws, but there should be some kind of, you see, restrictions as well on them that can have potential harm in there. मैं पीछे भी एग्जांपल देता हूं। तो आखिरकार 60s में जाके अमेरिकन कोर्ट ने डिसाइड किया इस पे कि yes, this is a very important ethical values that everybody has to be free, but this freedom is not unbridled, this freedom is not totally absolute. इसके अंदर कुछ चीजें हमें मैयर या देखने की जरूरत है। तो उन्होंने फिर कोर्ट ने बड़ा खूबसूरत डिसीजन दिया था, मेरे ख्याल के मुताबिक उस पर फिल्में भी चंद बनी है, आप लोगों ने देखी हो, फिल्मों से जो शौकीन रखते हैं। तो कोर्ट ने एक बड़ा खूबसूरत एक पैराडॉक्सिकल तो नहीं है, उसको एक बड़ा प्रोवर्बल चीज दी थी कि क्राइंग फायर इन अ क्राउडेड थिएटर, दिस इज द लिमिट ऑफ फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन। क्राइंग फायर इन अ क्राउडेड थिएटर, आग लगे, मैं इसकी बम की एग्जांपल आपको दे रहा था, आग लग गई, क्राउडेड थिएटर है, उसमें से अगर आप बाहर निकल स्टैम्पीड होगा, तो ये फ्रीडम नहीं दी जा सकती किसी को। आप फायर कह के फिर भाग पड़े और फिर लोग भी आपके पीछे भाग पड़े, या बम कह के भाग पड़े और लोग भी आपके पीछे भाग पड़े, दिस कैन नॉट बी ऑफ कोर्स गिवन। और स्पेशली कोर्ट ने अगला सेंटेंस बड़ा खूबसूरत दिया था, वो भी सुनने वाला है, उस पर फिल्म बन चुकी है। इफ देयर इज a clear and present danger involved. Clear and present danger फिल्म का नाम है। If there is a clear and present danger involved, साफ नजर आ रहा है कि मैं ये लफ्ज बोलूंगा तो क्या नुकसान हो सकता है, और फिर भी मैं बोल रहा हूं। Here you have to contain yourself because this is something going anti-humane. So freedom of expression right is of course very important with this, that you cannot say anything which is going to the canon, a very important principle of journalism, principle of communication, that you cannot go anti-human, something that can has a potential of creating some inhuman feelings among the people, in the society. So we have to be very careful about that. अच्छा, वेस्ट से मेरी मुराद अभी अमेरिका नहीं है, मैं यूरोपियन वेस्ट की बात कर रहा हूं। उन्होंने अमेरिकन से भी बहुत पहले जॉन स्टुअर्ट मिल्स और जॉन मिल्टन ने बड़ी खूबसूरत बातें इस पे की थी। एक खूबसूरत बात है, तो इसलिए पता नहीं कब आपसे फिर मुलाकात का मौका मिले तो मैं ये टैग लाइन आपके साथ दे देता हूं। जॉन मिल्टन ने कहा था कि आपकी फ्रीडम उस वक्त खत्म होगी, यानी फ्रीडम इतनी एब्सोल्यूट कह रहा था कि जब तक उस फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के रिजल्ट में किसी को फिजिकल नुकसान ना पहुंचे, है ना। वो कितने दूर तक फ्रीडम की, वो कहते हैं उस वक्त तक आप फ्री हैं जब तक आपकी फ्रीडम से किसी को फिजिकल नुकसान ना पहुंचे। हम उसको अपने तौर पर कैसे, भाई आपकी आजादी उस तक है जहां से मेरा नाक शुरू होता है ना। हम इसको आमतौर पर, लेकिन एक्चुअल जो वर्ड्स थे जॉन मिल्टन के वो ये थे। एरेपेजिटी का उसका एक स्पीच है पूरी जो पार्लियामेंट में उसने दी थी सम 300 years बैक। ये मैं उसका कंटेक्स्ट आपको बता रहा हूं। तो हमारे यहाँ उसको जिस तरह कहते हैं ना कि आपकी आजादी मेरी नाक तक है, यानी नाक से आगे अगर आप हाथ हिलाएंगे तो मुझे नुकसान पहुंचेगा ना। तो जहां पे फिजिकल नुकसान नहीं पहुंचता उस वक्त तक आप फ्री है कोई भी चीज कहने में।
यार बाज़ दफ़ा तो दिल को तो नुकसान पहुंचता है साइकोलॉजिकल, उस वक्त पता नहीं साइकोलॉजी नहीं होती होगी लोगों की, पत्थर होते होंगे कि आपको साइकोलॉजिकली कोई बंदा कह दे आई हेट यू मैन, और आप उसको कहें कि यार मुझे कोई बाजू तो नहीं काटा इसने मेरा। अच्छा, यहां पर उसने ये भारत उसकी इंटरप्रिटेशन बाद में जो उसने अरब पे जुडिका में जो कोई लिखा था ये मैंने आपको बता दिया, बाद में जो खुद उसने इंटरप्रिटेशन दी अपने इसकी एक्सप्रेशंस में, उन्होंने कहा कि मैं यहां जब फिजिकल हार्म की बात कर रहा हूं, ही वाज ही हिमसेल्फ वाज राइटिंग अंटिल समवन्स हैंड इज चॉप्ड, लफ्ज उसने इस्तेमाल किया है ना, यानी फिजिकल हार्म से बड़ा ये कि आपका हाथ काट जाए तब ये फिजिकल हार्म कंसीडर होगा, छोटी मोटी चोट को भी वो नहीं लिख रहा। तो इतनी फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन की वो बात कर रहा था। एनीवे वी डू नॉट एग्री विद दैट बिकॉज के दिस इज दिस इज समथिंग वेरी स्ट्रेंज टू टॉक अबाउट अनलेस सम काइंड ऑफ यू सी फिजिकल हार्म इज देयर। उसको हार्म प्रिंसिपल के नाम से याद किया जाता है, आप उसको नेट पे भी जरूरत पड़ेगा, हार्म प्रिंसिपल, HARM, हार्म प्रिंसिपल ऑफ जॉन मिल्टन। अच्छा, एक बंदा आई लव हिम, और जरूर पढ़ें अगर आपको भी मौका मिले, उसका नाम जॉन स्टुअर्ट मिल्स है। इज डिफरेंट पर्सन, लिटरेरी है, लिटरेचर का बंदा है जॉन स्टुअर्ट मिल्स, जो लिटरेचर बैकग्राउंड से, उसने बड़ी खूबसूरत डेफिनेशन दी थी, जस्ट वन लाइनर ऑन दैट एज वेल, ताकि हम ह्यूमन का कन्वेंस थोड़ा सा बड़ा हो गया अनफॉर्चुनेटली, लेकिन मैं इस पर अब जल्दी से निकलता हूँ। उसने उसकी किताब है एक छोटी सी, मेरा ख्याल है 110 पेजेस की, 120 पेजेस की है, जरूर पढ़ें, जिंदगी में एक मरतबा पढ़ लें, आज अगर मौका नहीं मिलता तो 10 साल बाद ही पढ़ लीजिएगा, लेकिन पढ़ें जरूर उसको अगर आप का तालीम के साथ थोड़ा सा भी शगफ है। किताब का नाम है ऑन लिबर्टी, वेरी स्मॉल बुक, ऑन लिबर्टी। प्रीफेस में लिखता है, ये किताब मेरा ख्याल है उर्दू बाजार के साथ अगर जाए ना तो संडे को जैसे लगे होते तो वहां पे भी आपको मिल जाएगी, और नेट पे भी आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं, छोटी किताब है। ऑन लिबर्टी पे जॉन स्टुअर्ट मिल्स इन द बिगिनिंग अपने प्रीफेस में जो पैरा चैप्टर 1 है इंट्रोडक्शन वगैरह, उसमें लिखता है, खूबसूरत बात है, हजम कीजिएगा इसको। वो कह रहा है, मैं उर्दू में बात करता हूँ, अंग्रेजी वाले लफ्ज उसके शायद मैं रिपीट नहीं कर सकूंगा। वो कहते हैं अगर एक शख्स पूरी दुनिया को सच बोलने से रोकता है तो कितना बड़ा डिक्टेटर होगा। इमेजिन करें ना, पूरी दुनिया सच बोलना चाह रही है और वो एक शख्स उनको नहीं बोलने दे रहा। सदाम हुसैन बना हुआ है, जियाउल हक बना हुआ है। इफ वन पर्सन अगर इस सारी दुनिया को नहीं बोलने दे रहा कि आप सच भी है कोई तो सच पे भी बात नहीं कर सकते, तो हम उसे क्या कहते हैं, डिक्टेटर कहते हैं ना। वो अगली बात वो कहते हैं कि पूरी दुनिया अगर मिलके किसी एक शख्स को जो भी वो बोलना चाहता है, वो चाहे सच है या झूठ है या आधा सच है या आधा झूठ है, वो बोलने से अगर रोके तो ये पूरी दुनिया उसी लेवल की डिक्टेटर बन जाएगी। इमेजिन, है ना, व्हाट एन इमेजिनेशन, ऑनेस्टली आई एडमायर हिम अ लॉट। क्या बड़ी थ्योराइजेशन है उसकी, अंग्रेजी में उसको पढ़िएगा आपको ज्यादा अच्छा लगेगा, लेकिन मैं उसको समझाने के खातिर आपको, मैं अंग्रेजी वाला रिपीट उसके नहीं कर पा रहा। तो वो कह रहा है कि एक शख्स जब पूरी दुनिया को बोलने से रोकता है तो बहुत बड़ा डिक्टेटर होता है, सच बोलने से, लफ्ज सच बोलने से। और अगर ये पूरी दुनिया मिलके किसी एक को, मैं यानी हम सारे, आप ये चाहेंगे नहीं जी डॉक्टर जफर को बात नहीं करने देते, तो अब सारे ठीक है ना, डेमोक्रेटिकली इफ यू से दैट नो सर नो क्लास दैट्स एनफ वी आर टायर्ड, योर राइट टू स्पीक इज ओवर नाउ तो फिर मुझे क्या होगा, मैं बाहर निकल जाऊंगा। वो कहते हैं कि आप भी उतने बड़े डिक्टेटर बन जाएंगे पूरी दुनिया कि अगर किसी एक शख्स को, चाहे वो सच बोलना चाहता है, झूठ बोलना चाहता है, हाफ ट्रूथ बोलना चाहता है, उसको अगर रोकें तो पूरी दुनिया उस लेवल की जो है ना बन जाएगी। इमेजिन करें ना, ये जिसे आप कह सकते हैं दुनिया की जो इंपॉर्टेंट थियोराइजेशन है मैंने आपके साथ की, लेकिन यहाँ पे क्या है, क्यों रोकते हैं और क्यों अलाउ करते हैं? दोनों फॉर्म्स के अंदर ह्यूमैनिटी इज इंपॉर्टेंट। If you do not do for them, if you are doing something which is not humane, इसका मतलब ये हुआ कि you are not doing anything honestly. इंसान तो पैदा ही दूसरों के लिए पैदा हुआ है ना, अपने लिए तो जानवर ही पैदा होते हैं, सिर्फ अपने लिए खाना पीना जगह साफ करके रह लेना। इंसान तो सबके लिए होता है ना, बाकियों के लिए होता है, फैमिली, इसलिए इंसान को सोशल एनिमल कहा गया है, एनिमल नहीं कहा गया क्योंकि एनिमल, हर एनिमल अपनी तरह से रहता है जिंदगी। अच्छा, लास्ट, of course, if
anybody who cannot be made accountable. You have to be accountable for whatever you have done. ये नहीं हो सकता कि आप क्या के भाग जाएं, अपनी शायरी सुना के आप भाग जाएं, दूसरे की जरूर सुनेंगे आप. This is very important, that it is not that you say something bad and get scot free. No, this is not possible. You have to be accountable for that, so that for the next time if you are saying wrong, you should be careful. And you should be allowed or not be allowed. That has to be, you see, determined by whatever you said in the past, whatever you have done in the past. होते हैं ना ये, आप कोई भी गलत काम करें तो आपको फिर उसकी सजा तो भुगतनी पड़ती है ना. The accountability is very important. तो जहां पे अकाउंटेबिलिटी का एलिमेंट नहीं होगा, यानी अकाउंटेबिलिटी इज अ वेरी इंपॉर्टेंट एलिमेंट. अकाउंटेबिलिटी हमारे यहाँ मीडिया में किस फॉर्म में आती है? फीडबैक. आज आप क्या अकाउंटेबिलिटी है आपकी? यार, I have said a lot many good things, but people are not liking it on social media. This is accountability. People don't like you. That's why they are not clicking on you. They don't watch you. मैं इतना कुछ कसम से करता हूँ, 200 लोगों ने देखा है, 400 लोगों ने देखा है, 600 लोगों ने देखा है, तो मैं अपने आप को उसी वक्त अकाउंट मैंने कुछ भी नहीं किया. रीमा करती है ना, जो वीना मलिक करती है, फौरन चीजें आ जाती है. आपने देखा, मिलियंस में आ जाते हैं. और आप कसम से इतने अच्छी अच्छी स्पीचेस करते हैं, इतना बहुत कुछ आप लिखते हैं, पढ़ते हैं, अच्छे अच्छे इंटरनेशनल जर्नल्स के प्लेस करते हैं, नीचे लिखा होता है 72 रीड्स. ठीक है, तो मुझे इस का 12 क्लिप रहेगा. बल्कि कोई गोरा था, उसने अभी जो मेरी लास्ट था उसमें कमेंट में दिया हुआ था, उसने कहा कि आपका जो, मैंने चंद एक चीजें, कोई गोरा था उसने मुझे लिखा कि मैंने चंद एक वीडियोस आपकी देखी हैं, तो बड़ी क्वालिटी और उसके अंदर बड़ा कंटेंट है, बट आई एम सरप्राइज दैट व्हाई यू आर नॉट गेटिंग द व्यूज. तो आप जो है ना किसी अच्छे बंदे को हायर करें जो आपके व्यूज बढ़ाने में काम करा सके आपका. तो व्यूज आपके, मैं किसी भी जगह देखता हूँ 200 300 400, इससे ज्यादा व्यूज नहीं. तो ये व्यूज कैसे बढ़ाए जाते हैं, ये ऑनेस्टली बड़ा प्रॉब्लमेटिक चीज है. मुझे तो आज तक समझ नहीं आई कैसे हो सकते हैं, बट ऑफ कोर्स माय जॉब इज टू डू एंड दैट आई एम डूइंग. इफ पीपल आर नॉट वाचिंग इट, मे बी सम टाइम व्हेन they would understand, they would be able to watch it. ये भी होता है ना बाज दफा. तो लेकिन ये है कि हमारे यहाँ चूंकि क्रैप चीजों को देखने का ज्यादा फैशन है, वो कोई यहाँ से आप लाहौर की किसी थिएटर की लगा लें तो फिर उसके बाद देखें लम्हों में व्यूज आसमान पे जा पहुंचते हैं, मिलियंस में कसम से. और आपको बहुत अच्छा लेक्चर वहां पे डाल दें, बड़ी अच्छी आपने कोई. अब फिर क्या, ये एथिकल वैल्यूज में मैंने इसको रखा हुआ था आपके साथ शेयर करने. क्लिक बेट एक लफ्ज इस्तेमाल होता है. डू यू नो इट, एनी वन ऑफ यू? यस सर, आया था. अच्छा, क्लिक बेट ये होता है बच्चों कि हम क्या करते हैं, बड़ी स्पाइसी किस्म की हेडलाइन लगा देते हैं, ये तस्वीर लगा देते हैं, और उसको आप क्लिक करते जाते हैं तो अंदर कुछ भी नहीं होता. जावेद चौधरी ये बहुत करता है ना. जावेद चौधरी की वेबसाइट पे आप जाए ना, उसने ये कहा है कि कल सिस्टम तब्दील हो जाएगा. अब ये हेडलाइन है. अब आप हैरान होते हैं. साथ ही जो तस्वीर लगा देता है सुप्रीम कोर्ट की, दूसरी तस्वीर लगा देते हैं चीफ ऑफ, या कैप रख देता है, स्टिक साथ रख देता है. बंदे पे चलिए, कल कल क्या सिस्टम को मार्शल आ रहा है कल. आप फौरन क्लिक करते हैं, उसके अंदर रहते हैं कल जो है ना मौसम का सिस्टम तब्दील हो जाएगा, बारिशें खत्म हो जाएंगी. बारिशें खत्म हो जाएगी. आप बिलीव करें, ये आप, मैं ऐसे नहीं कर रहा आपको, दिस इज द रियलिटी. फॉर क्लिक बेट पीपल डू थिंग्स लाइक दैट. दैट्स व्हाई अब लोगों को समझ आना शुरू हो गए, वो कम उस पर जाते हैं. और अब तो हमारे चैनल्स ने भी क्लिक बेट करना शुरू किया. 92 चैनल, 94 चैनल, पता नहीं 95 भी कोई हो, तो ये चैनल्स भी उठा के देखें, इन्होंने भी आप क्लिक बेट इस्तेमाल करना शुरू कर दिया कि इतनी कोई स्पाइसी किस्म की वो हेडलाइन देंगे, अंदर जाके देखेंगे तो मौसम की खबर होगी, या इमरान जा रहा है, इमरान आ रहा है, नवाज शरीफ क्या कर रहा है, उसने क्या सुबह खाया पिया, वो लिखा हुआ होगा. लेकिन वो चूंकि लोग हेडलाइंस के थ्रू चले जाते हैं बॉडी में, जब वहां पे जाते हैं तो वहां पता चलता है कि कुछ भी नहीं है. लेकिन क्लिक हर बंदे ने कर लिया. अब इसी के रिजल्ट में आपको बताऊं क्या रहा, कि लास्ट ईयर की बात कर रहा हूं, अभी 2022 में ये सूरत हाल ऐसी नहीं है. जावेद चौधरी की वेबसाइट दुनिया की 8 से 12 जो वेबसाइट सबसे ज्यादा विजिट करने वाली है ना, उनमें से थी. यू वोंट बिलीव दैट. ये क्लिक बेट की सारा कुछ है. 8 से 12 के दरमियान में रोटेट कर रही थी.
आप उनका स्टैटिस्टिक्स उठा के देखें, और ये क्या होता है, ये आपको लाखों रुपए देती है। ये चीज आपको क्या देती है? लाखों रुपए। मोर द विजिट्स, मोर द क्लिक्स, मोर द एड्स, और मोर द एड्स से मुराद है कि मोर द मनी। So this is what we do. We grab the audience by creating some kind of situation and sell them to the advertisers and get money from them. ये होता है ना, हर जगह भी ये हो रहा है ना। मुझे याद है, मैं इस पे किसी की एग्जांपल दे रहा था, और उन दिनों में ये था कि एक बड़ी इंपॉर्टेंट 18th अमेंडमेंट, यस 18th अमेंडमेंट पाकिस्तान की कॉन्स्टिट्यूशनल हिस्ट्री के अंदर बड़ी इंपॉर्टेंट कंसीडर किया था, जहाँ पे सूबों को अख्तियारात ज्यादा गए, ये एजुकेशन का बेड़ा गर्क हुआ, बाकी जो सारा कुछ नजर आता है ना, वो 18th अमेंडमेंट की बड़ी जिसे आप कहते हैं फॉल आउट्स उसमें से नजर आते हैं। 18th अमेंडमेंट की बड़ी इंपॉर्टेंट डिबेट नेशनल असेंबली और सेनेट के कंबाइंड इजलास के अंदर हो रही है, बहुत इंपॉर्टेंट, दुनिया देख रही है उसको, ये दुनिया चैनल नहीं, हम सारे। अचानक जियो क्या करता है, एक छोटे से उसको वीडियो क्लिप मिलता है कि हमारा कौन है जिसने इंडियन प्लेयर के साथ शादी की है, मलिक, शोएब मलिक, और उसके साथ दूसरी खातून कौन है, सानिया मिर्जा। ये अपने बेडरूम में, उनकी 2 दिन पहले शादी हुई थी, उनकी बेडरूम की कोई वीडियो है जिसमें वो डांस कर रहे हैं, और वो किसी ने बाहर से ना ऐसे पीप इन करते हुए ना उसकी वीडियो बना ली थी। वो वीडियो चल गई। जो ही वो वीडियो चली, यू सी दे आर वेरी सेवी, दे आर लुकिंग एट थिंग्स वेरी कीनली, कि मीडिया के शिफ्ट, लोगों की शिफ्ट कहां जा रही है। फौरी तौर पर जब देखा कि वो सब जियो की तरफ चले गए, तो डॉन भी वो लगा दी, जंग ने, सॉरी अपने दुनिया ने भी वही लगा दी। बहुत इंपॉर्टेंट डिबेट ऑफ 18th अमेंडमेंट 2 मिनट में खत्म हो गई। सारे मीडिया वही चला रहे थे, कोई डायरेक्ट उसको लाइन पे ले रहा है, हाँ जी आपकी वीडियो आई है तो क्या तासुरात हैं, लोग उसको बड़ा खुशी से देख रहे हैं, कोई सानिया को पकड़ रहा है, कोई कैमरामैन उसकी तरफ भाग पड़ा है। वो जो इंपॉर्टेंट डिबेट दैट हैज इनफैक्ट ramifications for the constitution of Pakistan, for the entire country politics, people in fact had all that instant diverted towards that very single crap video that was played by one channel. यही हो रहा है, और आप ये देखें कहां गए एथिक्स, एंड दिस इज व्हाट हैपनिंग। तो अनफॉर्चुनेटली मैं ये कह रहा हूं कि ये प्रैक्टिकल एग्जांपल्स हैं, इनको अगर आप देखें तो आपको महसूस हो कि बड़ी मुख्तलिफ चीज़ों से जो है ना वो चीज़ें चल रही हैं। मैं कुछ डेवलपमेंट ऐसे इस वजह से बात हो गई, एथिक्स में यकीनन ज़्यादा बात नहीं करूँगा, आगे मेरे पास बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें शेयर करने के लिए। एथिक्स कौन सी चीज़ें जन्म देती हैं? लॉज हैं, सोशल नॉर्म्स हैं, आपके मार्केट प्रेशर्स हैं, और आपके डेफिनेटली आर्किटेक्चर है, सोसाइटी का, मीडिया का, इनका आर्किटेक्चर है, डिज़ाइन है। ये वो चीज़ें हैं जो एक्चुअली दीज आर 4 इंपॉर्टेंट थिंग्स विद द हेल्प ऑफ विच वी डेवलप एथिक्स हैं। आपकी सोसाइटी, आपके सोशियो कल्चरल नॉर्म्स, और आपके जो मार्केट है प्रेशर डेफिनेटली डालती है, इस चीज़ को दें, इस चीज़ को ना दें। आपके यहाँ मोबाइल के कितने ही चार्जेस बढ़ जाएं, कोई खबर नहीं आएगी टेलीविजन पे, मलिक रियाज साहब कुछ भी कर ले खबर नहीं आएगी टीवी पे। आपके पास कितने और इस किस्म के पावरफुल एलीट हैं, आप उनके मुताल्लिक कुछ भी कर लें, you would not see that anything is negative appearing in them. मीडिया बात भी नहीं कर रहा उस पर, वजह ये कि दे आर प्रोवाइडिंग देम द फूडर, पैसे दे रहे हैं। तो इस पूरे एंटायर सिस्टम को ऑनेस्टली हमें तब्दील करने की जरूरत है। इस पर अगर आप लोग ज्यादा चाहें तो मेरे वेब चैनल आपको बता दूंगा, या मैम को पता है, तो उसमें मैं ये जो हम कहते हैं ना टारगेटिंग सिस्टम, जिसको आई इम्पैक्ट हो उसी चीज को दिया जाए, और जो मीडिया पे इस किस्म की नेगेटिविटीज जनरेट हो रही होती हैं, इसके वाले से भी मैं, जो मार्केट है पाकिस्तान में, आपको शायद नहीं पता, देयर आर ओनली 15 मेन फाइनेंशियल प्रोवाइडर टू द मीडिया, 15 इंटरनेशनल मल्टीनेशनल कंपनीज हैं, और ये परपेचुएट करती हैं हमारे सिस्टम के अंदर कॉन्फ्लिक्ट और अनएथिकल चीजों को, बिकॉज दे स्पॉन्सर देम। यू प्ले समथिंग बैड, सो इमीडिएटली स्पॉन्सर आ जाएंगे कि आप इसको मेरा डालो, यहाँ पे मेरी ऐड डालो।
ऐड का रेट कीमती हो जाता है ना, फुल दो पर आ जाते हैं, आप इसको डालो। तो जो ही लोग आपकी तरफ आए तो वो भी आ गए कि हमारा, जब ये स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शंस होते हैं, कोका कोला वाले कहते हैं कि जब आपका पॉइंट इस पे पहुंचे तो हमारी ऐड डाल दिया करें, 10 दफा डाल दिया करें। स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शंस, यू अंडरस्टैंड दिस पॉइंट? रेटिंग पॉइंट जब आपका ऊपर नीचे हो रहा है, तो जब आप ये इन चंद मल्टीनेशनल कंपनीज की तरफ से मीडिया को इंस्ट्रक्शंस होती हैं कि जब आपका रेटिंग पॉइंट इससे ऊपर हो तो फिर जो भी रेट होता है ना इसके मुताबिक, तो आप इस पे हमारी ऐड लगा दिया करें। क्यों? you help them by creating a scene which is of course negative, most of the time unethical, and they are there to provide you this kind of, you see, fodder as well in shape of finances. तो इसका इम्पैक्ट की तरफ जाएं, और मेरा इसके हवाले से बड़ा कंसर्न है। आई विश आई कुड बी पैमला चेयरमैन, अगरचे कि पैमला चेयरमैन कैसे शायद आप कुछ कर ना सकें, वजह यही कि बहुत बड़े बड़े सिस्टम्स हैं जो आपको गवर्न कर रहे होते हैं। तो लेकिन यह है कि वी हैव टू टॉक लाउड अबाउट दैट देयर नीड टू बी लुक्ड एट द इम्पैक्ट ऑफ समथिंग। नो इम्पैक्ट, नो मनी शुड बी पोरिंग इन। सो इस चीज को हमें देखने की जरूरत है। एनी हाउ, ये चीजें सारी इंपॉर्टेंट है। अब जरा थोड़ा सा मैं चंद एक चीजों की तरफ आपकी तरफ लेके जाता हूं आपको। हमारे साथ ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, और खास तौर पर इस सोशल मीडिया वर्ल्ड के अंदर बहुत ज्यादा we most of the time go for, you see, unethical thing, infringement है कॉपीराइट्स की। आप किसी का मटेरियल उठा के डाल दें, कहीं की चीज आप डाल दें और आप you go scot free, you are not bothered about that you have committed plagiarism, you have violated copyrights laws. तो कॉपीराइट इश्यूज अब सोशल मीडिया के साथ और डिजिटल मीडिया में बहुत ज्यादा राइज हो चुके हैं, और इसके हवाले से पीपल आर नॉट सेवी ऑन देम, दे डोंट नो इट। एजुकेशन ना होने के मुतरादिफ है। आप देखें, आप कॉपीराइट हिट्स मिलते हैं, आप यूट्यूब पे कोई चीज डालते हैं, अगरचे कि मोस्ट ऑफ द चीजें अभी तक वो कवर नहीं कर पा रहे। जैसे म्यूजिक, आपने किसी का भी म्यूजिक उठा के डाल दिया अपने पीछे, दिस इज अगेंस्ट दी, यू सी, दिस इज इन्फ्रिंजमेंट ऑफ कॉपीराइट लॉ। आप जाएं, वो फ्री साइट्स अवेलेबल हैं जहां पे फ्री म्यूजिक है, वो डाल लें। आप फ्री म्यूजिक नहीं डालते, आपने टाइटैनिक का वीडियो पीछे म्यूजिक डाल दिया। होता है ना, ये किसी अगर रोमांटिक चीज आपने बनाई है, कोई मूवी शो या कोई ऐसे क्लिप बनाया है, तो पीछे टाइटैनिक की वीडियो साउंड डाल देते। दैट्स कॉपीराइट वायलेशन। डिड यू आस्क परमिशन? नहीं। और आप कितनी दफा ये काम हम सारे करते हैं, एंड वी डू नॉट हैव एनी आइडिया अबाउट दैट। फिर हर एक चीज, अच्छा, न्यूज मीडिया की बहुत सारी चीजें हैं जो आप डालते हैं, अब आपके कंटेंट का एक खास शेयर है जो अगर एक्सीड करेगा इंपोर्टेड कंटेंट से, तो कॉपीराइट हिट आ जाएगी आपको। आपने CNN की कोई चीज उठाई, BBC की कोई चीज उठाई, किसी और की चीज उठाई, आपने वो चीजें प्ले करना शुरू कर दी, और आप खुद कम आए या आपका ओरिजिनल कंटेंट कम था, हिट आ जाएगी कि आपने कॉपीराइट्स किया है, उनसे परमिशन नहीं ली। एक खास लिमिटेड टाइम तक तो आप ले सकते हैं, और एट्रीब्यूट किए बगैर आप ये भी नहीं कर सकते। तो ये चीजें जो है ना, वो हमें अनफॉर्चुनेटली इसके हवाले से हमारी एजुकेशन ना होने के मुतरादिफ है, जिसकी वजह से हमें कॉपीराइट की वजह से बड़े प्रॉब्लम्स आते रहते हैं। फिर एक बहुत बड़ा मसला हमारे साथ है, डाटा को चोरी करते हैं। डिजिटल वर्ल्ड में ये बड़ा इंपॉर्टेंट कंसर्न है। कहां का डाटा है, किधर से डाटा आपने लिया, नोबडी नोज अबाउट दैट। और आप उस चीज को अपना डाटा कंसीडर करा के या एट्रीब्यूट किए बगैर, आप अपना बेशक ना भी गए, एट्रीब्यूट नहीं किया, सोर्स नहीं किया, उसको बताया नहीं है, तो ये प्रॉब्लमेटिक चीज है। और इस हद तक हो रही है, मैं ऑनेस्टली बताऊं आपको, हमारी एक रिसर्च थी उस वक्त, एहसन इकबाल साहब, ये पिछली गवर्नमेंट की बात कर रहा हूं, इस वक्त भी एहसन इकबाल साहब उसी मिनिस्ट्री को देख रहे हैं, और इससे पिछली जब गवर्नमेंट थी तो इसी मिनिस्ट्री को देख रहे थे। तो इन्होंने एक सेमिनार कराया था, फ्रॉम सेंसेशनलाइजेशन टू डेवलपमेंट। तो उसमें मीडिया के भी बहुत सारे दोस्तों को और
एकेडमिया के भी चंद एक लोगों को कि हम सेंसेशनलाइजेशन से, जो कि मीडिया के एथिकल वैल्यूज को यकीनन एक बहुत बड़ा थ्रेट पोज कर रही हैं, हम कैसे इसको रिड्यूस कर सकते हैं और डेवलपमेंट ओरिएंटेड चीजों की तरफ हम ज्यादा जा सकते हैं। तो इस पे कुछ हो रहा था और हमारा कुछ इस पे रिसर्च वर्क था। उस रिसर्च वर्क को मैंने किसी एनजीओ को प्लेटफॉर्म से किया था। तो उसकी एक रिपोर्ट पब्लिश की थी हमने, और उस रिपोर्ट के रिजल्ट वहां पर वो जो स्टॉलवर्ड्स हमारे चंद एक जर्नलिस्ट हैं जो दाएं बाएं मिनिस्टर साहब के साथ बैठे हुए थे, हम तो बीइंग छोटे वो सामने बैठे हुए थे, एकेडमिया को तो इस तरह से लिया जाता है ना। So they were there to talk about this, that how to reduce sensationalization and go and move for development. So he was in fact giving presentation, one of the very important journalists, मैं उसका नाम नहीं लेना चाहूंगा, और उसके अंदर वो सारा डेटा मेरी रिसर्च का डाला हुआ था, सारा डेटा, किसी जगह उसने बताया था कि नहीं. And he was, you see, grabbing the whole audience attention by saying this thing, look, that's what we are doing, look, that's what we are doing. But of course, yaar, who has done this? He has reviewed something. मैं सामने बैठा हुआ हूँ, ग्रुप इससे थोड़ा बड़ा था जो हम मौजूद थे, बड़ा हाल था जिसमें हम बैठे हुए थे, लेकिन थे हम राउंड टेबल में. अब मैं वहां पे खड़े होकर कह तो नहीं सकता था क्योंकि मेरी और ज्यादा इंसल्ट हो जानी थी. अभी तो मैं खुद महसूस कर रहा था ना जो इंसल्ट जो अंदर हो रही थी. कहता तो शायद हो सकता है मेरा एक्चुअल वर्ड छिन जाता मुझसे. वो खत्म हुआ तो फिर उसके बाद मैं उस जर्नलिस्ट के पास गया. मैंने कहा सर ये डाटा आपने कहाँ से लिया है? ये मेरा असिस्टेंट है, उसने निकाल के लाया था. तो मैंने कहा सर आप खुदा का खौफ करें, आप असिस्टेंट से पूछ तो लें कि कहाँ से लिया है. उसको एट्रीब्यूट तो करने, वो असिस्टेंट ने खुद तो ये डाटा जनरेट नहीं किया. दिस इज एन एफर्ट ऑफ years ऑफ माई एफर्ट, माई होल टीम एफर्ट, विच इज पुट इन शेप ऑफ सम काइंड ऑफ रिसर्च वर्क. कोई एट्रीब्यूशन भी कोई चीज होती है. आप डाटा चोरी करके वहां पे लगाया हुआ है, वहां पे मैं खड़ा होकर आपको इस बात पे शाउट कर देता और वो नेट पे अवेलेबल है, साल पुराना डाटा है, नेट पे अवेलेबल है, मेरे नाम के साथ अवेलेबल है, तो क्या इज्जत रह जाती? ये बहुत कॉमन है जो मैं बताने की कोशिश कर रहा हूं आपको, बहुत कॉमन है. वी स्टील द डाटा, वी पुट इट एज एट आवर ओन, do not attribute them to the one who actually has collected that data. Please don't do that. This is an academic, highest level academic dishonesty. चूंकि इंस्टीट्यूशनल सेटअप हमारे हैं, उसके अंदर तो किसी हद तक इन चीजों का ख्याल रखा जाता है जो मेन स्ट्रीम मीडिया है. सोशल मीडिया पे जो हम अपनी चीजें बना रहे होते हैं, वी आर डैम बॉदर्ड अबाउट देम. ऑनेस्टली बी केयरफुल अबाउट दैट, बी सेवी ऑन इट प्लीज. There is no harm, in fact, putting someone's data out there by attributing them. Because greatness starts in recognizing others' efforts, यार. दूसरों के efforts को आप appreciate करो ना, attribute कर दो. तो ये मैं समझता हूँ बहुत बड़ी जो infringement है ethical values की, जो हमें social media में बहुत ज़्यादा नजर. We don't have any concern for the privacy. वो paparazzi journalism सुना हुआ एक concept तो जानते होंगे. पापराजी जर्नलिज्म का जो कॉन्सेप्ट है ना, वो ये था कि फोटोग्राफर्स मोस्टली वो सेलिब्रिटीज के पीछे भागते थे. वो जहां कहीं बैठे हुए हैं उनकी प्राइवेट चीजों को भी बड़े दूर से कैमरे शैमरे लगा के वो फिर अखबारात को बेचा करते थे. दे वर इनफैक्ट मोस्ट ऑफ टाइम फ्रीलांस जर्नलिस्ट एंड दे वर वर्किंग ऑन दिस. वेस्ट के अंदर ये बहुत है, खास तौर पर ये लोग भाग रहे होते हैं. जैसे इमरान खान की बहुत सारी तस्वीरें देख रहे हैं आज का टीवी पे, जिसमें वो कहीं पे वॉक कर रहा होता है लड़कियों वगैरह के साथ. तो क्या था? पापराजी जर्नलिज्म का रिजल्ट है. He didn't know it and the people are watching them, people are making video of those things and then these are played there now. इसी पापराजी ने ही तो एक्चुअली प्रिंसेस डायना की जान ले ली. वो भाग रही थी फात के साथ, नहीं मतलब कैमरे से भाग रही थी. कैमरे से भाग रही थी वो, और तेज से स्पीड से वो निकले तो एक्सीडेंट हो गया फ्रांस में जो उनका एक्सीडेंट हुआ था. और चूंकि उनके साथ पहले भी ऐसे बहुत ज्यादा हो चुका था, तो आई मीन टू से कि ये जो प्राइवेसी है, वी हैव टू बी वेरी केयरफुल अबाउट दैट. एवरीवन इज नॉट फ्री फॉर योर कंटेंट. देयर आर सर्टेन प्राइवेट मोमेंट्स, देयर आर सर्टेन थिंग्स that requires permission to intrude into or to have an ingress into. किसी के बेडरूम में जाके आप कोई चीज, जैसे मैं अभी थोड़ी देर पहले आपको एग्जांपल दी है, तो उस किस्म की चीजों को आप मीडिया पे नहीं चला सकते. ही वुड हैव
you see, gone for a case against this media जिसने ये काम किया था. How could do someone like this that my very personal moment with my wife is being, you see, captured on camera and are played on TV? कौन इजाजत दे सकते हैं इसकी? But we are most of them thirsty for this kind of cheap popularity. तो हमें उस वक्त तो पॉपुलैरिटी मिल रही होती है ना, तो लिहाजा हम इसको महसूस नहीं करते. But otherwise, you see those who are not fond of popularity, and we are fond of course, giving those things that can glamorize you and of course giving you more name, more clicks. हमें ये चीज चाहिए होती है, लेकिन इसके साथ साथ जो एथिकल वैल्यूज हैं उनको भी हमें ऑब्जर्व करने की जरूरत है. फिर इसके अलावा ओनरशिप, बहुत सारी चीजों की ओनरशिप हम खुद लेने की कोशिश कर रहे होते हैं. आई हैव डन इट माई सेल्फ, दिस इज माई ओन क्रिएशन. आइडियाज की ओनरशिप आप ले लेते हैं, उसको आइडियाज की प्लेजरिज्म, इतनी बड़ी दुनिया के अंदर प्लेजरिज्म कंसिडर की जाती है कि उनको किसी भी वैल्यूएबल चीज के लिए बिल्कुल डिक्लेयर कर दिया जाता है इनएलिजिबल. हमारे यहाँ क्या होता है, आप स्टूडेंट्स को हमने बहुत सारे स्टूडेंट्स को जब ये असाइनमेंट्स देते हैं कि आप कोई 1 मिनट की वीडियो जिसके अंदर कोई इंपॉर्टेंट मैसेज हो बना के लाएं. सो इंस्टेड ऑफ थिंकिंग बाय योरसेल्फ, आप क्या करते हैं, वो 1 मिनट की वीडियोस देखते हैं, उसमें कोई एक नाबीना कैसे हेल्प कर रहा है किसी को, या नाबीना की कैसे हेल्प की जा रही है, वो आपने आइडिया पिक किया, फिर उसके बाद आपने उसी किस्म के 2 बंदे बिठा के काम शुरू, जिसे चरबा फिल्में कहते हैं. इस किस्म की चरबे वीडियोज भी बनती हैं दूसरों के आइडियाज पे. आपने एक आइडिया पे आपने कई क्लिप्स देखे होंगे आपने, है ना. अक्सर औकात ये आजकल टिकटॉकर्स तो यही मोस्टली काम करते हुए नजर आते हैं. तो इनफैक्ट इट्स नॉट एक्चुअली प्राइमरीली, इट्स नॉट योर आइडिया, वो जस्ट कॉपीड इट एंड reproduced it and then posed it to the people and put it to the people as of your own. No, it's not yours. It was someone else who have just reproduced them. तो इस किस्म की चीज जो है ना, वो हमें आजकल मेरे ख्याल के मुताबिक आप देखें तो ये टिकटॉक वगैरह इन सब चीजों पे बहुत ज्यादा नजर आती है, जहां पे दूसरों के आइडियाज पे आपने अपने तौर पर उसको फिल्मा के चीजों को लेने की कोशिश कर रहे होते हैं. अच्छा, इट हैज बिकम नाउ अ वेरी it has become now a fashion, honestly, very popular. Whatever you do, you immediately send to the people, even those who do not like to watch you, and they ask you, please unsubscribe me. I don't want to receive your videos, your links, your social media contents that you generate. मुझे कई मतलब आया और मैंने उनको खैर unsubscribe कर दिया. But if you keep on doing that, this is very unethical, and under law at many places in different parts of the world, under law that has become now a punishable offense. In Pakistan, under PICA Act, that has also become a punishable act now. If somebody is keep on, spamming you and giving you, flooding your mailbox with unwanted mails that you do not want to receive them, so you have to warn them not to send. And still, if they keep on sending, then you have every right to go to court of law and आप FIA में जाकर उनके खिलाफ FIR कटा सकते हैं. So spamming is considered as a very important punishable offense in digital world. तो हमें इस चीज का भी ख्याल रखने की जरूरत है. If somebody is asking you not to send me this again, then we have to stop sending them. उनको delist कर दें. प्लीज इस चीज को ये पुश ना करें लोगों को कि वो हर हालत में जो आपने चीज बनाई है, आप समझते हैं कि ये बहुत कीमती है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, लोगों को जरूर सुननी चाहिए, देखनी चाहिए, और आप उनको ऐसे कॉन्स्टेंटली भिजवाते रहें. इसको स्टॉप करें. ये जो है ना वो हार्मफुल कॉन्सिक्वेंसेस इसके होते हैं, और इसको वन हैज टू अवॉइड इट. डेफिनेटली दिस इज इम्पॉर्टेंट. जो हमारे यहाँ अलबत्ता ये चंद एक सोशल मीडिया पे खबरें चल रही होती हैं कि पाकिस्तान इज रैंकिंग ऑन द टॉप एज बीइंग द वन हु इज सर्चिंग अ लॉट ऑफ पोर्नोग्राफी. ये मेरा ख्याल है कि सारी हाईली स्टूपिड चीज़ें हैं, इसके पीछे ना जाया करें. लेकिन ऑफ कोर्स दिस इज समथिंग दैट इज वेरी ऑब्जेक्शनेबल, और वेस्ट के अंदर भी इसके हवाले से बड़े क्लियर लॉज अवेलेबल हैं, और हमारे यहाँ अनफॉर्चुनेटली इस किस्म की चीज़ें लॉ के तहत तो कवर होती हैं, but we have hardly seen anything like this, that somebody has been indicted or somebody has been incriminated against this kind of thing, that they are distributing pornographic things, accessing to them excessively, that too underage हैं या आप allowed नहीं हैं, तो उसके बावजूद भी आप उसको access कर रहे हैं, बना रहे हैं, फिर उसको further share भी कर रहे हैं. तो these are objectionable things, और definitely हमें इसको देखने की जरूरत है.
फिर इसके अंदर ये इम्पोर्टेंट है कि सेंसरशिप हर मुल्क के अंदर अपने एथिकल वैल्यूज के मुताबिक बहुत ज़्यादा सेंसरशिप के लाज मौजूद हैं। तो हमें भी ज़रा इन चीज़ों को देखने की ज़रूरत है कि क्या चीज़ हम करने की कोशिश कर रहे हैं, क्या कोई उसके पोटेंशियल इफेक्ट्स हमारे दिमागों पे तो नहीं आ रहे, हमारे बच्चों पे तो नहीं आ रहे। अब देखिए वेस्ट के अंदर भी हमें इन चीज़ों को देखने का मौका मिला है कि आपके पास हर चीज़ पर कि ये 12 प्लस के लिए है, ये 18 प्लस के लिए है, ये 13 प्लस के लिए है। वेरी क्लियरली थिंग्स आर देयर। वी डू नॉट पुट थिंग्स देयर ऑन आवर प्रोग्राम्स। इवन जो वायलेंस के लिए भी चीजें हैं, जैसे फॉर एग्जांपल पैमरा लॉ ये कहता है कि आपने ये जो क्राइम के रीएनैक्टमेंट के प्रोग्राम्स हैं, शबीर देख रहा है, कोई देखे ना देखे, शबीर तो देखेगा, ये ड्रामे आपने देखे होंगे बहुत सारे। अब पैमरा एक्ट के तहत भी वो रात के मेरा ख्याल है 11 बजे के बाद लगा सकते हैं। आप इस किस्म की रीएनैक्टमेंट ऑफ क्रिमिनल एक्ट उसको आप नॉर्मल प्रोग्राम के अंदर वो 7 बजे लगे होते हैं, 8 बजे लगते हैं, रिपीट टेलीकास्ट दिन में भी लगे होते हैं। No care for that. And you see, people learn a lot of negative things out of those programs. आपने गाड़ी कैसे चुरानी है, आपने धोखा कैसे देना है, आपने चार शादियां कैसे करनी है, उसके अंदर बकायदा जिसे आप कह सकते हैं ना ये चीजें सिखाई जा रही होती हैं और रीएनैक्ट करके उनको लोगों को बताया जा रहा होता है। It's good to let people know about things, but of course, negative and consequences of those negative aspects, not the ways that how to conduct it. Our focus is more to, in fact, investigation is more on this, that how it has been conducted, and less on it what has been done with them then. यानी वेस्ट के अंदर अच्छी फिल्मों को अगर आप उठा के देखें, एनालिसिस करें, तो देयर कंसर्न मोर इज ऑन द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ एनीथिंग बैड। आवर कंसर्न मोर इज इन हाउ बैड थिंग हैज बीन डन, नॉट ऑन द कॉन्सिक्वेंसेज। तो मैं समझता हूं कि अगर कोई बुरी चीज इतनी है जिसको आप चाहते हैं कि आप सोसाइटी को एजुकेट किया जाना चाहिए, देयर आर मेनी वेज ऑफ डूइंग वन थिंग। So we have to have, of course, this kind of thing in view, that whatever you do, that should be in fact for the overall benefit of the society, not for. ये मैं आपको इसके हवाले से बात पहले भी कर चुका हूँ। हेट स्पीच के बारे से ज्यादा बात हो चुकी थी कि सोशल मीडिया इस वक्त हेट स्पीच का बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म बन चुका है। इतना बड़ा प्लेटफॉर्म बन चुका है कि आप किसी भी एक ग्रुप के मुतालिक, या आप हेट स्पीच को अगर आप देखना चाहते हैं किसी एक खास कम्युनिटी के मुतालिक क्या हो रही है, किसी एक एथनिक ग्रुप के हवाले से क्या हो रही है, किसी एक रिलीजियस ग्रुप के हवाले से क्या हो रही है, तो सोशल मीडिया का बहुत अनफॉर्चुनेट इशू ये है कि यहाँ पे चूंकि रेगुलेशंस ऐसे सच अवेलेबल नहीं है, और रेगुलेशंस अगर हैं भी सही तो वो नेशनल लेवल की हैं, यूनिवर्सल नहीं है, तो जिसकी वजह से ये हेट स्पीच बड़ी प्रमोट हो रही है अनफॉर्चुनेटली। इस पे मैंने आपको बहुत कुछ बता दी है और ज़्यादा बात भी इस हवाले से हुई है, तो ये हमें ज़रा देखने की ज़रूरत है इसके हवाले से। अब पहले ही मेरा ख्याल आई स्टार्टेड विद दिस थिंग कि इसको हमें डीकंसेप्चुअलाइज करने की ज़रूरत है, डीवेस्टर्नाइज इन कॉन्सेप्ट्स को करने की ज़रूरत है। ऑब्ससिनिटी, प्रोफैनिटी, इंडिसेंसी, जो चीज़ हमारे लिए इंडिसेंट है वो वेस्ट के लिए हो सकता है बिल्कुल ना हो, और जो चीज़ वेस्ट के लिए इंडिसेंट है वो हमारे लिए हो सकता है कि बिल्कुल ही ना हो, या उनके लिए नॉर्मल चीज़ भी हमारे लिए बहुत इंडिसेंट हो सकती है। तो इन चीज़ों को ज़रा हमें थोड़ा सा डीवेस्टर्नाइज, और जो हमारी वैल्यू सिस्टम है उसको यूनिवर्सलाइज। आई डोंट से वेस्टर्नाइज, आई ऑलवेज यूज वर्ड यूनिवर्सलाइज। यूनिवर्सल वैल्यू सिस्टम सबके लिए एक्सेप्टेबल होने की बात करता है। अब उसके लिए हमें कुछ काम करने की जरूरत है कि हम ये सारी चीजें जो है उसको इस फॉर्म के अंदर ले आ सकें, जो कि लैंग्वेज के हवाले से भी हो सकती है, जो कि पोजिशंस के हवाले से भी हो सकती है, जो कि आइडियाज के हवाले से भी हो सकती है। तो ये हम तो समझते हैं ना कि ये जो ऑब्ससिनिटी है या जो प्रोफैनिटी है, ये सिर्फ और सिर्फ तस्वीरों के साथ ही इसका ताल्लुक है, नहीं, ये लफ्जों के साथ ताल्लुक है, पोस्टर्स के साथ ताल्लुक है, आइडियाज के साथ भी इसका ताल्लुक है। तो हमें हर किस्म के, फॉर एग्जाम्पल आइडियाज से मैं अगर बात कर रहा हूँ, ये बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड रिलेशनशिप, हम ये आइडिया है ना, नॉट एसेंशियली दैट यू शो समवन एज बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड इन सम इनडिसेंट फैशन। हम आइडिया की बात कर रहे हैं। इफ दिस आइडिया इज बीइंग पॉपुलराइज्ड, सो इसका मतलब ये हुआ कि वी आर समहाउ गोइंग एंटी टू दीज टैबूज की तरफ हम जा रहे हैं, टैबूज को हम एक्सेप्टेबल बनाने की कोशिश कर रहे हैं। तो वट एवर इज दैट, हमें उसके लिए कोई रिस्पेक्टेबल वे इसके लिए तलाश करने की डेफिनेटली जरूरत होती है। इसकी बात कर रहा था मैं, टैबूज को हमें अवॉइड कराने की जरूरत है, प्रमोट ना करें उसको।
ये मेरा ख्याल है कि कुछ इंपॉर्टेंट चीज थी। बाकी ये सारे इंक्रिप्शन एक्सेस वगैरह ये भी सारे, मैं क्वेश्चन आंसर पे ज्यादा जाना चाहूंगा। आइडेंटिटी थेफ्ट के बारे से थोड़ी पहले मैंने बात की थी, वेस्ट के अंदर बहुत ज्यादा और हमारे यहाँ भी अब बहुत ज्यादा आना शुरू हो गई है कि आपका डाटा चोरी हो जाता है, आपकी आईडी कार्ड पे सिम निकले हुए होती हैं, आपके फिंगरप्रिंट्स चोरी हुए हुए होते हैं, आपका पर्सनल डाटा चोरी हुआ था, आपका फेसबुक हैक हो गया, यूट्यूब अकाउंट हैक हो गया। दीज आर वेरी कॉमन कंप्लेंट्स दैट वी हैव नाउअडेज। तो दिस काइंड ऑफ यू सी थेफ्ट और दिस काइंड ऑफ आइडेंटिटी जो क्राइसिस में आ जाते हैं हम लोग, वो इसी सारे चीजों की है बदौलत। तो वो आजकल बहुत हो गया है। हैकर्स, मतलब मेरा बेटा मुझे बड़े आसानी से कहता है कि पापा मैं आपका हैक कर दूं, मैं यार मैं ऐसे बता देता हूं। तो हैक करना बच्चों के लिए प्रॉब्लम ही नहीं है, आपके ये अकाउंट्स को हैक करना, डाटा स्टील करना, दिस इज नो मोर ऑफ इशू, नो मोर ऑफ प्रॉब्लम। तो ऑफ कोर्स ये एक बड़ा की कंसर्न है और इसके लिए इंटरनेशनल लेवल पे बड़े लॉज बन चुके हैं और इसके हवाले से पाकिस्तान में भी अब थोड़ी बहुत इस पे काम शुरू है, लेकिन डेफिनेटली ये इतना हमारे यहाँ नहीं है। प्राइवेसी पे भी बात कर चुका हूँ, कॉपीराइट पे बात कर चुका हूँ, मेरा ख्याल है दैट्स इट, ये सारी चीज़ें हो चुकी हैं। क्वेश्चन आंसर की तरफ जाते हैं आप। जो एथिकल वैल्यू सिस्टम जिन पे हमें ख्याल रखने की जरूरत है डिजिटल वर्ल्ड के अंदर, उस पर थोड़ी सी बात की, बट आई वुड बी मोर इंटरेस्टेड टू टेक योर क्वेश्चंस इफ एनी। कमेंट्स आर फ्री प्लीज। Have I been so boring? हाँ, तो मुझे डर लग रहा है कि आप लोगों को मैं इस्लामाबाद से आया हूँ यार, इतनी दूर से। क्या मैं इतना प्रोग्रेसिव था कि सब कुछ आपको समझ आ रहा है? अस्सलाम वालेकुम सर, मेरा नाम अब्बास खान है और मेरा क्वेश्चन जो है वो ये इलीगल कंटेंट जो है इसके बारे में। सर मैं एक फ्रीलांसर हूँ और मेरे साथ एक पार्टनर है जो कि फीमेल है और फेसबुक पे हम ये है कि मेरा लॉगिन उसके पास है और उसका लॉगिन मेरे पास है और वो इस वजह से है कि दिन को उसकी ड्यूटी होती है और रात को मेरी। तो एक दिन मैं उसके फेसबुक पे लॉगिन था और किसी ने उसको एक इस तरह की ग्रुप में ऐड किया, ठीक है। तो वो एक रिलीजियस टाइप फीमेल है और मैं उस टाइम ये सोच रहा था कि हमारी फीमेल्स घर के अंदर भी सेफ नहीं है, तो मतलब ये कैसे हम इसको प्रिवेंट कर सकते हैं और कैसे क्या टिप्स ऐसे हो सकते हैं कि हमारी फीमेल जो है वो इस चीज़ से बच जाए। बेटा बहुत इम्पोर्टेंट, और मैं इसमें डॉक्टर नादिया को भी रिक्वेस्ट करूंगा कि हमारे यहाँ इसके हवाले से जो लॉज इस वक्त अवेलेबल हैं, आपको बगैर इजाज़त किसी ग्रुप में ऐड करना या आपके आइडेंटिटी के हवाले से चीज़ों को डिस्क्लोज करना, लोगों में शेयर करना, और आपको इस किस्म का इन अ डिफरेंट मीन्स हरास करना है, ये दिस इज इफ यू आर सेइंग समथिंग आर डूइंग समथिंग टू मी दैट आई डोंट लाइक, सो इट मीन्स दैट यू आर इन अ वे harassing me. Harassment is not always sexual nature, it's this is my workplace, so I may be harassed because of these kind of actions. अब इस पे laws available हैं. We have to make people savvy on those laws. We have to make them understand and make them know that what these laws are available and what are the concerned agencies where you can lodge a complaint against them. इसमें मैं डॉक्टर साहब से मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि FIA वाले ये काम आजकल कर रहे हैं एज अ कैंपेन, वो अपने स्टूडेंट्स के साथ, जर्नलिस्ट के साथ इंटरेक्ट कर रहे हैं। वो घंटे का 2-2 घंटे के सेशंस, उनकी पूरी टीम आती है एंड देन दे एजुकेट पीपल कि क्या ऐसी चीज़ें हैं जो आपके साथ पेश आएँ। फॉर एग्जांपल फिशिंग हो रही है, आपकी स्पैमिंग हो रही है, जिस किस्म की सिचुएशन आपने क्रिएट की है, तो क्या लॉज अवेलेबल हैं, कौन से लॉज इस किस्म के क्रिमिनल एक्ट्स को गवर्न करते हैं, और उनके लिए कंसर्न एजेंसीज कौन सी हैं जहां पे ये कंप्लेंट आप लॉन्च कर सकते हैं। तो देयर शुड बी लेसन्स ऑन देम, or there should be some kind of, you see, campaigns to make people at large aware about these kind of things. तो मैं समझता हूँ कि इसके हवाले से लॉज भी अवेलेबल है, इसके अलावा से आप जो है कंसर्न एजेंसीज भी अवेलेबल हैं। शी शुड इमीडिएटली रिपोर्ट टू साइबर क्राइम विंग ऑफ FIA। उनको बताने की जरूरत है, उनके इल्म में ले जाने की जरूरत है, ताकि वो जो शख्स ये काम कर रहा है
उसकी आइडेंटिटी के थ्रू उस तक पहुंचें और उनको वार्न करें, या अगर कोई हाईली क्रिमिनल नेचर की चीज हो गई है तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाए। तो लॉज अवेलेबल हैं, वेज अवेलेबल हैं, एजेंसीज अवेलेबल हैं। जो आपने सिचुएशन पेश किया उसके हवाले से हमें ज्यादा अवेयरनेस देने की जरूरत है। कल कला किसी और को इस किस्म की सिचुएशन में से गुजरना पड़ता है तो दे शुड नॉट बी टोटली ब्लैंक अबाउट देम एंड यू सी stop doing the business that they're doing and then retain themselves at homes. ऐसा नहीं है। हमें इन चीजों को कन्फ्रंट करने की जरूरत है और इसके हवाले से जो हमारे कानून मौजूद हैं उन कानून के हवाले से जो एजेंसीज रेलेवेंट हैं उनसे रब्ता करने की जरूरत है। तो ज्यादा अवेयरनेस एक्चुअली इस चीज का जैसे आप कह सकते हैं एक बेहतर सोल्यूशन हो सकता है। और इसके हवाले से मैं डॉक्टर साहब को रिक्वेस्ट करूंगा, मैंने अपनी यूनिवर्सिटी में उनके 2 सेशंस करवाए हैं। ये एक्चुअली जो ही स्टूडेंट्स हमारे पास आते हैं, मुझे पिछले साल से मुझे मौका मिला है, तो जो ही स्टूडेंट्स नए मेरे पास आते हैं तो मैं उनके लिए एफआई वालों को रिक्वेस्ट कर देता हूँ। तो उनकी एक टीम है जो बाकायदा ये काम करती है एंड दे मूव ऑल अक्रॉस द कंट्री बिकॉज एफआईए इज अ फेडरल इंस्टीट्यूशन, दे हैव सेटअप्स एवरीवेयर। तो इनके लोगों को यहाँ पे बुला के, जैसे ये हमारा सेशन था तो दे शुड हैव बीन गिवन 1 hour सेशन टू देम एज वेल। दे कम फ्री ऑफ कॉस्ट, दे डोंट चार्ज एनीथिंग, प्रोवाइड यू लिटरेचर, प्रोवाइड यू फैसिलिटीज। एक और काम भी हो सकता है इस हवाले से वर्चुअल यूनिवर्सिटी के जो दोस्त हैं उनको मैं कहना चाहूंगा कि दे शुड गेट देयर लेक्चर्स रिकॉर्डेड और वो पीसीज में आप मुख्तलिफ वक्त में जब अपने चैनल्स हैं उस चैनल पे जब ये चल रहे होते हैं तो वो इस हवाले से एजुकेशन के पर्सपेक्टिव में ये छोटे छोटे पीसेज में वो इंफॉर्मेशन कम्युनिकेट करना शुरू करें, ताकि क्योंकि जो स्टूडेंट्स हैं जो इस किस्म की चीज़ों को मोर ऑफन फेस कर रहे होते हैं, दे शुड बी एबल टू नो इट दैट in that case once they encounter such a indecent thing, in that case what are the options available with them, legal options available with them, so that they should protect themselves. तो मेरे ख्याल के मुताबिक ये एक बड़ा अच्छा होगा कि we should hold some kind of session with them as well. Awareness is the only solution. Thank you very much for asking such a wonderful thing that is in fact giving us lead to some other actions. जी बेटा। अस्सलाम वालेकुम सर, मेरा नाम हफ्सा है, मैं मीडिया की स्टूडेंट हूँ। बट सर मेरा क्वेश्चन ये है कि अब जैसे मैं आगे मीडिया में जाऊँगी तो आपने जैसे बात की फ्रीडम ऑफ स्पीच की, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन की और ट्रूथ की, तो लेकिन अब हम अपना मीडिया देखें तो वो तो बिल्कुल नहीं ऐसे है। मतलब कि अब हम कितने जर्नलिस्ट देख रहे हैं जैसे जमील फारूकी है और इमरान याज खान है, उनको हम वो फ्रीडम पे बोलते हैं लेकिन उनको तो ऐसे किया, उनके साथ क्या सलूक किया गया। तब मैं खुद को कैसे मोटिवेट करूँ कि मैं आगे जाके मीडिया में सच बोलूँ। बेटा ये एक ग्रिम रियलिटी है that you have tried to highlight, that freedom is not there and freedom is there. Now, not there on some of the subjects that you think are restricted, and there in some of the things where people are least bothered. If you say anything about that, if you do anything about that, people would not say anything. I mean, if you want to demean your own country, if you want to demean your own culture, if you want to say anything bad about anybody, people would be least bothered about that. But about certain areas, certain segments of the society, if you say anything and then you are caught, है? तो ये चीजें जो है ना, जिसे आप कह सकते हैं दोनों एक्सट्रीम्स पे अनफॉर्चुनेटली अवेलेबल हैं। और आई स्पोक अ लॉट अबाउट दैट कि हमारे यहाँ किन चीज़ों पे हम फ्री हैं और किन चीज़ों पे फ्री हैं। जिन पे फ्री हैं वो बिल्कुल अनब्राइडल्ड फ्री हैं ऑनेस्टली। अच्छा, देयर इज ऑफ कोर्स despondency, बट दिस हैज टू बी रिमूव्ड बाय यंग लाइक यू। हमें अपनी आवाज को तो रेस करना है। पहले गॉन आर द डेज व्हेन दीज ओनली मीडिया वर अवेलेबल, जिनके अंदर आप देख सकते हैं कि वी हैड एन एक्सेस एंड थ्रू ओनली दीज इंस्टीट्यूशंस वी वर टू से थिंग्स अबाउट थिंग्स। अब तो आपके पास ये है, सोशल मीडिया है, ट्विटर है, यूट्यूब है, चैनल है, आप उनसे ज्यादा इन चीजों की तरफ जा सकते हैं। वन डे आई वाज डिस्कसिंग दिस विद तलत हुसैन के अब आप मीडिया पे नहीं हैं तो हाउ डू यू फील। उसने कहा आई एम मोर पॉपुलर देन आई यूज्ड टू बी ऑन मीडिया। मैं द न्यूज़ में लिखा करता था तो द न्यूज़ की जो टोटल सर्कुलेशन है वो 1.5 लाख है, और उस 1.5 लाख में से अगर मैं तस्वर करूँगा कि 10% लोग भी अगर पढ़ते होंगे तो इसका मतलब है कि सारे 15,000 पढ़ते होंगे। अब 15,000 लोग एडिटोरियल पढ़ते हैं जिसमें वो लिखा करता था, तो उसमें से कितने लोग ऐसे होंगे फिर जो मेरा पीस उसमें से पढ़ते होंगे। तो यहाँ पे आप काउंट करके देखें तो दे आर हार्डली फ्यू। अब वो कहता है कि जब मैं कोई चीज कहता हूँ लोगों के लिए कहता हूँ तो इन एन आवर टाइम आई रीच टू मिलियंस।
and I very easily come to know about it that who are the people, those who are watching me, saying, listening to me. तो अब क्या हो रहा है कि आपके पास डिफरेंट प्लेटफॉर्म अवेलेबल हैं जहां पे आप बात कर सकते हैं. Freedom is, I mean, means to which you can express freely and in abundance. So we should not be having this kind of defense and despondency, you know. अब आपको ज्यादा ओपन होके न्यू वेज, एक्सप्लोरिंग न्यू वेज ऑफ डूइंग थिंग्स जो है ना वो आपके पास अवेलेबल है. नो नीड ऑफ दिस काइंड ऑफ यू सी डिसअपॉइंटमेंट. अब आपके पास मुख्तलिफ ऑप्शन हैं, आप उनको एक्सप्लोर करें इंशाल्लाह ताला. इफ यू से समथिंग वैल्यूएबल, आई बिलीव दैट वुड गेट हर्ट. लेकिन अगर आप कहें कि हर एक चीज, जैसे मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि मेरी हर एक चीज हर जगह तक पहुंचे, लेकिन नहीं पहुंचती, इसलिए कि आई डोंट से द थिंग दैट द पीपल माइट हैव एन इंटरेस्ट इन. तो आप लोगों के इंटरेस्ट की बात करें, आप वो बात करें जो ये देखें ना, कल के लोग कौन है, सदीक चांद, बड़ा पॉपुलर. कल परसों में सदीक जान साहब को अपने डिपार्टमेंट में कहा करता था कि आए हम हमारे यहाँ कोई स्टूडेंट्स के साथ इंटरेक्ट कर लें. तो ही वॉज वेरी हैप्पी टू इंटरेक्ट विद स्टूडेंट्स. आज उसे टाइम लेना मुश्किल. क्यों? एकदम से आप वो मिलना शुरू हो जाते हैं, पॉपुलैरिटी, आपकी बात को सुनी जाती है. तो ऐसा नहीं है, अभी हर एक के पास इक्वल चांसेस हैं. आप अपनी क्वालिटीज को इस्तेमाल करें, आप अपनी इंजेन्युइटी को इस्तेमाल करें, आप अपनी क्रिएटिव फैकल्टीज को इस्तेमाल करें. सोशल मीडिया, डोंट गो फॉर नाउ आस्किंग फॉर एनी जॉब. गो फॉर अर्निंग समथिंग एंड मेकिंग योर ओन मीडिया. मीडिया में आप जॉब करने के लिए क्यों जाएं? उन पे क्यों डिपेंडेंट हो मेन स्ट्रीम? अब अपना खोले मीडिया. आपके पास जैसे आपकी अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल हैं जिसमें आप अपने तौर पर जा सकते हैं. अब तो मैं ही हर जगह पे. जी. अस्सलाम वालेकुम सर. सर सर मेरा क्वेश्चन है ह्यूमैनिटी पे कि आजकल के दौर पे जो है वो दो पार्टीज जो मतलब कि आपने बात की कि पीके आप इमरान खान का बता रहे होते हैं. अब तो जो दोस्त हैं वो भी नहीं आपस में बात कर सकते. पिछले दिनों पे एक वाकया आया था कि एक घर में इसके मामले पे ही उन्होंने कत्ल कर दिया बच्चे, लड़के ने अपने घर वालों को. तो यहाँ पे हम ह्यूमैनिटी कैसे मतलब कि जब दो पार्टीज के दरमियान हम बात करते हैं तो दो दोस्त भी लड़ पड़ते हैं और वो क्या लेते हैं रिश्तेदार भी लड़ पड़ते हैं. तो हम इसमें ह्यूमैनिटी कैसे लेके आएंगे? इस चीज को खत्म करने के लिए आप कुछ बता सकते हैं? बेटा, यू हैव said something very close to my heart, unfortunately. बड़ा sad reality है, because हमारी जो कन्फ्रंटेशनल पॉलिटिक्स है ना, उसने पूरी सोसाइटी को डिवाइड करके रख दी है, घरों को डिवाइड करके रख दी है. ये मेरा और आपका शायद कम काम है, हमारे एल्डर्स की ये बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि पॉलिटिकल डिफरेंसेस शुड बी इन अ डिसेंट वे. ये जिस किस्म की ब्रॉलिंग, आई एम सॉरी यूजिंग दिस वर्ड ब्रॉल फॉर देम, बिकॉज brawl is in fact used for the dogs when they fight with each other. So the way they in fact scuffle with each other, that's not a decent way of in fact doing things in politics, and especially at national level. पाकिस्तान एक बहुत बड़ा मुल्क है, 7th 8th biggest country of the world है. तो हमारे इन जो political leaders हैं, they need to understand this thing कि अगर आप political difference भी है तो political difference को भी आप किसी एक decent way में लेके आगे बढ़ सकते हैं. जरूरी नहीं है कि आप उसको इस कॉन्फ्लिक्ट वेक में आप लेके आए जहां पर घरों के अंदर जो दो दोस्त बैठे हुए हैं, भाई बैठे हुए हैं, उनके दरमियान में भी आपस में दुश्मनी पैदा हो जाए. तो एक तो पहला एस्पेक्ट इसका ये बन जाता है कि दे हैव टू टेक दिस रिस्पॉन्सिबिलिटी दैट वंस दे यू सी डिफर विद एनीवन, देन दैट डिफरेंस शुड बी विद सम काइंड ऑफ डिसेंसी. दूसरी चीज बेटा हमें समझने की जरूरत है कि हमें इस चीज को समझने की जरूरत है, बीइंग एन इंडिविजुअल ऑफ द सोसाइटी, कि वी हैव टू इनफैक्ट गेट अवे दिस काइंड ऑफ यू सी पॉलिटिकल आइडेंटिटीज. बस एक झंडा लगा दिया और बस वो गलत है या सही है, हम उसके साथ ही रहते हैं. जिन ममालिक के अंदर ये बड़ी डीप डिवाइड होती है, उन ममालिक के अंदर पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी बढ़ी हुई होती है आमतौर पर. ये डिवाइड इन दैट सेंस के I would not care about that who has been presented as the candidate to represent us in the assembly, but if it is represented by put up by some political party that I have been affiliated since centuries, since you see my ancestors, so I would not care about it that वो कहते हैं खंबा भी खड़ा कर देंगे तो वो भी जीत जाएगा. तो मेरे ख्याल के मुताबिक we have to go beyond that.
वो आमतौर पर पॉलिटिकल सिस्टम के अंदर 3 किस्म के लोग पाए जाते हैं in developed countries. One are the pre-campaign deciders, and they are the people that I'm just talking about. I mean, they have throughout of their life they are attached with one political party and one ideology. दूसरे जो है ना वो होते हैं campaign deciders. There is a campaign, there are the people, they have the agenda, they put up those agenda for the assessment of the people, and on the basis of that, the people are to decide about that who should I vote for, who is more, you see, capable of performing for the agenda that they have just put up. आप उस पर डिसाइड करें, और पिछली दफा उन्होंने अच्छा परफॉर्म नहीं किया तो इस मरतबा उनको ना दें. सो दिस इज अ काइंड ऑफ थिंग दैट द कैंपेन डिसाइडर्स हैव टू डू. थर्ड लेवल पे जो चीजें पाई जाती हैं ना, वो हमें इस वक्त इसकी बड़ी शदीद जरूरत है, जिसको वेस्ट के अंदर जो है ना वो अनडिसाइडेड वोटर्स कहते हैं या फ्लोटर्स कहते हैं. यूजुअली दे आर द पीपल दोज हु हैव अ वेरी स्ट्रांग ग्रिप ऑन द थिंग्स दैट आर हैपनिंग अराउंड देम. इंपॉर्टेंट थिंग है ना, very strong grip on the things. I know this, I know this, I know this. No, who should I vote for? Let me see that who is performing better, who has the potential to go further. And I do not make immediate decisions. ऐसे blindly नहीं जाता है. And most of them, they are the very well-educated segment of the society. So we have to educate the people that they should come out of these kind of differences that are there in the political सीन्स या पॉलिटिकल फोक्स के दरमियान में अवेलेबल हैं. हमें उनसे प्लीज बाहर निकल के देखना होगा. यही चीज जो है ना वो अनफॉर्चुनेटली पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी जिस मुल्क के अंदर होती है, उनकी सोसाइटीज इस तरह की डिवाइडेड नजर आती हैं. तो हमें इस चीज को प्रमोट करना होगा, सोशल मीडिया के थ्रू प्रमोट करें. पहले तो मैं बता चुका हूं कि ये हमारे पॉलिटिकल लीडर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, बट हियर फॉर ऑल ऑफ अस वी शुड टॉक अबाउट इट. हियर पॉलिटिकल डिफरेंसेस डज नॉट मीन that we are two different species. We are one and the same. We have to live under one umbrella. We have to sail in the same boat. So these kind of differences are the differences which are in fact at the mental level. I like something and you don't like something. That's it. तो इससे हम लड़ाई झगड़े वाली बात कहां तक पहुंची है. पीला रंग मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, पीला रंग बहुत अच्छा लगता है वर्चुअल यूनिवर्सिटी को, तो आई शुड यू सी स्ट्राइक विद दिस वॉल. नो, मैं इस कुर्सी पे ना बैठूं. नो, ऐसा तो नहीं होता ना. तो यहां पे जो हमारे अंदर टॉलरेंस लेवल है सोसाइटी के अंदर, उसकी इंक्रीज करने के लिए हम सबको एफर्ट करने की जरूरत है. टीचर्स को एफर्ट करने की जरूरत है, स्टूडेंट्स को एफर्ट करने की जरूरत है, हमारे इंटेलिजेंसिया को इसके हवाले से एफर्ट करने की जरूरत है, हमारे उलमा को अपना इसके हवाले से रोल प्ले करने की जरूरत है. टॉलरेट करें. जहां पर किसी दूसरे की बात को आप टॉलरेट नहीं करते, वहां पे फ्री स्पीच और वहां पे डेमोक्रेटिक सोसाइटी जन्म नहीं लेती. इस्लाम, मैं ऐसे बात कर रहा हूं, कहां पैदा हुआ? जहां पे मल्टी एथनिक सोसाइटी थी, जहां पे मल्टी कल्चरल सोसाइटी थी, जहां पे मल्टी लिंग्विस्टिक सोसाइटी थी. सबने उसको एम्ब्रेस किया, और इस्लाम ने भी क्या कहा, आप भी सबको राइट है, आप जहां पे जाना चाहते हैं. तो जो मल्टी कल्चरल, मल्टी एथनिक, मल्टी लिंग्विस्टिक सोसाइटीज के अंदर कोई चीज जब पैदा हो सकती है और वहीं पे ही पल बढ़ सकती है, तो हमारे तो बहुत छोटे छोटे डिफरेंसेस है. इमरान अच्छा है और फलां बुरा है, फलां बुरा है और इमरान अच्छा है. ये काम करना जिसे आप कह सकते हैं, इसके लिए थोड़ी सी टॉलरेंस हम क्रिएट करें, अपने अंदर ये रिजिलियंस पैदा करें कि कोई अगर चीज मेरे खिलाफ भी अगर आ रही है, जो मेरी पसंद या नापसंद के खिलाफ है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि मैं उसको बिल्कुल ही खत्म करने के दरपे हो जाऊं. हमें एब्जॉर्ब करना सीखना चाहिए, हमें बर्दाश्त करना सीखना चाहिए. तो सोसाइटी के अंदर ये जो अदम बर्दाश्त है, अनफॉर्चुनेटली ये बहुत बढ़ता जा रहा है, और हर एक की रिस्पॉन्सिबिलिटी है इस बर्दाश्त वाली सूरत हाल को वापस ले आना है. कभी हम ऐसे नहीं हुआ करते थे, हम रातों को दिनों को बड़े अच्छे एक दूसरे के साथ मिलना उठना बैठना. अब हम क्या करते हैं, ये पीपल्स पार्टी का है, ये पीटीआई का है, ये नून का है, ये काफ का है. क्या यार डिफरेंसेस बन गए. कोई होने से क्या फर्क पड़ता है. आप अपना वोट दें, वो अपना वोट दें. तो हमारे अंदर इट इज नॉट अबाउट पॉलिटिक्स ओनली. आप हर एक चीज के मतलब आप उठा के देख लें. हम आपको किसी चीज को देखकर खून खोलता है, यार क्यों खून इतना आपने हर वक्त जो है ना तवे पे चढ़ाया होता है, खोलना शुरू कर देते हैं. तो थोड़ा सा जिसे आप कह सकते हैं बर्दाश्त. मुझे हैरत होती है ऑनेस्टली, वेस्टर्न ने बड़ी देर के बाद जाके इन चीजों को सीखा है. लाइन में खड़े हुए हैं, पूछ रहा हूं कि यार आगे लाइन कौन है. भाई बंद होगी तो लाइन में खड़े हुए हैं ना. हमारे यहां हर बंदे जाके आगे जाके चेक करते हैं, ये क्यों रोड बंद है.
गाड़ियों से निकल के छोड़ के आगे जाके चेक करते हैं। लाइन हमने कभी आज तक नहीं बनाने की कोशिश करते। ये अदम बर्दाश्त की बड़ी डिफरेंट फॉर्मेट्स हैं। ना हम लाइन बनाने के चक्कर में हैं, ना हम कोई किसी चीज को भी देखें, अगर नापसंद है तो उसके नापसंदीदगी की इज़हार फौरन करते हैं, नापसंद है ना देखें। लेकिन हम रिएक्ट करते हैं, पत्थर उठा लेते हैं, बात कर लेते हैं। ये चीजें मैं समझता हूं ये हमारे अंदर जो एक एक्सट्रीमिस्ट बिहेवियर ऑफ नॉट एक्सेप्टिंग अदर्स या नॉट एक्सेप्टिंग द थिंग्स दैट आर अवेलेबल इन द सिस्टम एंड आई डोंट लाइक देम, इस चीज को खत्म करने के लिए हम सबको अपना रोल प्ले करने की जरूरत है। सर श्योर बिल्कुल ठीक ठीक बिल्कुल नहीं नॉट एट ऑल नॉट एट ऑल। Thank you, sir. I would request GM Market Ms. Rubina Ali to please come forward and present souvenir to Dr. Zafar Iqbal. Thank you, sir. Thank you. As very informative session is going on, so I request again Professor Dr. Zafar Iqbal to please come here and answer your questions. जी बेटा आपके पास यू हैड अ क्वेश्चन। सर अस्सलाम वालेकुम। सर मेरा क्वेश्चन सिर्फ ये था कि क्या नेपोटिज्म और फेवरेटिज्म भी इस कैटेगरी में फॉल करता है? सॉरी नेपोटिज्म और फेवरेटिज्म भी एथिकल वैल्यूज की कैटेगरी में फॉल करता है? श्योर सर, एक्चुअली जो है ना ये उससे ज्यादा बड़ा इंपॉर्टेंट है कि नेपोटिज्म हो गया या फेवरेटिज्म हो गया, दिस इज इनफैक्ट इनजस्टिस टू द सिस्टम ऑफ जस्टिस। इनजस्टिस है ये। इनजस्टिस तो जैसे आप कह सकते हैं एक सोशल वैल्यू है, वो बड़ी कीमती सोशल वैल्यू है। जिस सोसाइटीज के अंदर जस्टिस नहीं होता वो सोसाइटीज ज्यादा देर तक सर्वाइव नहीं कर सकती। आज आप देखें ना कि हर लेवल पे इट्स नॉट ओनली जस्टिस, जस्टिस का तो हम बड़े म्योपिक मीनिंग्स लेते हैं ना, वैसे छोटे से कूजे बंद करके हम कोर्ट के हवाले से बस जस्टिस की बात कर लेते हैं। सोशल जस्टिस बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं पिछले दिनों एक टीवी टॉक में था और वहां पे मुझसे जब पूछा गया हाउ डू यू डिफाइन सोशल जस्टिस, तो मैंने वहां पे ये कहा था कि जैसे घर के अंदर आप हैं सर, यू आर अ फादर ऑफ अ हाउस, सो यू हैव अ लॉट मेनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज ओवर दैट। यू हैव अ डॉटर, यू हैव अ सन, यू हैव वाइफ, and maybe you have a maid there as well, and you have parents too at home. ये बड़ा नॉर्मल सा स्ट्रक्चर है किसी भी घर का है, कोई अब नॉर्मल बात मैंने शायद ना की हो। अब यहां पे आप क्या करते हैं, यू हैव टू डिलीवर थिंग जस्टिफाइबली। जब आप बेटे को ज्यादा प्यार करते हैं तो कहीं ऐसा ना हो कि बेटी की तरफ ऐसी फीलिंग्स आ जाए दैट आई एम फील डिप्राइव्ड ऑफ द लव ऑफ माय फादर। तो आप ख्याल रखते हैं इस चीज का, कहीं बेटी के अंदर डिप्राइवेशन तो पैदा नहीं हो रही। जब आप बेटी को ज्यादा प्यार करते हैं तो बेटा कहीं महसूस करते हैं कि यार बेटी मेरी ज्यादा पैम्पर्ड है, मेरी बहन, और मुझे पेरेंट्स सोचते नहीं है मेरे मुतालिक, कोई अच्छी फीलिंग्स नहीं रखते। यू बिकम वेरी केयरफुल अबाउट दैट। वाइफ और पेरेंट्स के दरमियान में आप बैलेंस करने की कोशिश करते हैं। दिस इज व्हाट वी डू एवरी डे, प्रॉब्ली एवरीवेयर इन एवरी हाउस। सो दिस काइंड ऑफ जस्टिस सिस्टम यू सी इज सपोज्ड टू बी देयर इन सोसाइटी एज वेल। आप अगर किसी को फेवर कर देते हैं तो यू आर डूइंग unfavor and injustice to the people, those who are actually unmarried. It's killing for the married. मैं समझता हूं कि सोसाइटीज के अंदर वो हजरत अली रज़ी का कौल है ना शायद, या किसी और के कोई जो ना सोसाइटी इंसाफ के बगैर तो जिंदा नहीं रह सकती। मैं मौलाना तारिक जमील की एक बात, आजकल अगरचे को बड़े कंटेंशियस और कंट्रोवर्शियल हो चुके हैं, उनकी एक बात मैं कोट करता हूं जो उनकी किसी स्पीच में जो उन्होंने जस्टिसेस और जजेस के लिए जो बयान था उसमें से एक बात कर रहे थे, बड़ी खूबसूरत एग्जांपल है। वो कह रहे हैं कि जस्टिस सिस्टम रीढ़ की हड्डी होता है किसी भी सोसाइटी की। ये रीढ़ की हड्डी आपकी मेरी ना हो तो हम एक खड़े नहीं हो सकते।
आपके बॉडी के खड़े होने के लिए रीढ़ की हड्डी जरूरी है। कभी उस शख्स को देखें जिसकी रीढ़ की हड्डी में प्रॉब्लम हो, तो वो उठते हुए भी प्रॉब्लम है, बैठते हुए भी प्रॉब्लम है, सोते हुए भी प्रॉब्लम है ना। झुक के चलना, प्रॉपर पोस्चर में ना रखना अपने आप को, वो रीढ़ की हड्डी की वजह से होते हैं। और अगर वो रीढ़ की हड्डी किसी के पास नहीं है तो गोश्त का लोचड़ा होगा, सिर्फ बेड पे पड़ा हो सकता है, जो भी चीज खाएगी वो मुख्तलिफ फॉर्म्स के अंदर चली जाएगी उसकी। तो बैलेंस सोसाइटी के अंदर पैदा ही इंसाफ से होता है, जो रीढ़ की हड्डी है सोसाइटी की, किसी भी सोसाइटी की। तो मैं समझता हूं कि ये जो जस्टिस है, इसके लिए जो सबसे यानी इनजस्टिस जो बनेगा वो नेपोटिज्म और फेवरेटिज्म और ये सब चीजें बनती हैं। तो इसको आप जैसे आप कह सकते हैं ना कि एगैलिटेरियन लेवल पे लेके जाएं। एगैलिटेरियन लेवल से मेरी मुराद यहां पे ये है कि जैसे हम आइडियली किसी चीज को कहते हैं ना कि शेर और बकरी एक घाट पानी पिए, इस लेवल पे लेके जाएं। अप टू दैट लेवल इट शुड बी आइडियली बी इंप्लीमेंटेड। तो मैं समझता हूं कि जिस जगह पे भी आप देखें, आपको ये नजर आता है कि ये सिस्टम के अंदर डाउनफॉल की क्या वजह है, तो वजह हमें ये नजर आती है कि वहां पे फेवरेटिज्म बहुत ज्यादा है, वहां पे नेपोटिज्म बहुत ज्यादा है, अपने ही लोगों को लेके आ रहे हैं। पॉलिटिकल पार्टीज में आपने फेवरेटिज्म और नेपोटिज्म की बात करते हैं ना, जिसकी वजह से आज हमारे यहाँ ये हैशन नजर आ रहा है। तो दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट एंड दीज आर इन फैक्ट वेरी किलिंग एंड इनजस्टिस टू द ओवरऑल जस्टिस सिस्टम। सर जी बेटा। वालेकुम अस्सलाम। थोड़ा सा लाउड होंगे। मैंने एक्चुअली इतने ज्यादा बोले ना कि अब मेरे कान उस लेवल पे बोलने सुनने के आदी हो रहे हैं। बेटा ये वो पॉइंट है जो थोड़ी देर पहले हमारे एक दोस्त ने कहा था, टॉलरेंस का, कि हमारे यहाँ सोसाइटी के अंदर सच भी सुनने की, जिसे आप कह सकते हैं ना, बर्दाश्त खत्म होती जा रही है ना। टॉलरेंस सोसाइटी के अंदर ऐसे ऐसे खत्म हो रही है, और ये हम सब के लिए एक लम्हा फिक्रिया है। ऑनेस्टली वी नीड टू अंडरस्टैंड दिस थिंग कि जिस सोसाइटी के अंदर सच को, और नॉट ओनली सच, डिफरिंग ओपिनियन को भी, मैं देखिए ना, सच में थोड़ी देर पहले ही अपनी इस बात में पहले भी कह चुका हूं कि मेरा सच और आपका सच मुख्तलिफ हो सकता है। सच के बड़े फेसेस हैं, बड़े फैसेट्स हैं। सच कोई एब्सोल्यूटिज्म की फॉर्म के अंदर नहीं है। सच जो एब्सोल्यूट ट्रूथ है ना, वो ये है कि सूरज यहां से निकलता है वहां गुरूब होता है, ये दिन है और ये रात है। ये सच हर कोई एक जैसा मानने के लिए तैयार है। लेकिन जो सोशल रियलिटीज के सच है ना, उन सच्चाइयों की जो नेचर है वो बड़ी डिफरेंट है। हमें उनकी ऑन्टोलॉजिकल जो अंडरपिनिंग्स है ना, उसको समझने की और उसके हवाले से अपने आप को तैयार करने की जरूरत है। तो जब तक हमारे यहाँ ये टॉलरेंस लेवल इंक्रीज नहीं होगा, हम एक दूसरे को समझने की कोशिश नहीं करेंगे, उस वक्त तक मैं नहीं समझता कि चीजें कोई बेहतर हो सकती हैं। एंड वी ऑल हैव टू पुट इन एफर्ट टू मेक आवरसेल्फ टॉलरेंट, आवर सोसाइटी टॉलरेंट। टीच करने चाहिए, हमें बाकायदा लेसन्स देने चाहिए कि हाउ टू बिकम टॉलरेंट, हाउ टू बिकम रिजिलियंट। बिहेवियरल रिजिलियंस आपको किसी एक शख्स के अंदर, वेस्ट के अंदर हमने ये देखा है कि उन्होंने, आप तशरीफ रख सकते हैं, उन्होंने क्या किया हुआ है, उन्होंने इस सोसाइटी के अंदर रिजिलियंस अपने लोगों के अंदर जनरेट करने के लिए एफर्ट्स किए हैं। क्या एफर्ट्स किए हैं? अगर उनको नजर आता है कि योर बिहेवियर इज समहाउ इरैशनल एंड एग्रेसिव, और आप किसी की बात को सुनते नहीं है, मानते नहीं है, कोर्स पे भिजवाएं इसको। इसके जो है ना वो रेग्रेशन लेवल कम करने के लिए तरीका बताएं इनको। वी मोस्ट ऑफ द टाइम डोंट नो इट दैट हाउ टू रिस्पॉन्ड टू अ थिंग दैट आई डोंट लाइक। मुझे नहीं पता मैं कैसे इस पर रिस्पॉन्ड करूं। तो फिर मैं क्या करता हूं, मैं अपने इंस्टिंक्ट पे अपने आप को छोड़ देता हूं कि वो मुझे जैसे गाइड करें। जैसे जानवर होते हैं ना, जानवर को आप कोई चीज मारें तो वो आपको मारेगा ना मारे तो वो भी चलता रहेगा। तो अगर कोई चीज ऐसी जो हमें रिएक्ट करना है, हाउ टू रिएक्ट टू दैट, वी नीड टू बी लर्न अबाउट दैट, वी नीड टू बी टॉट अबाउट दैट। अब वो अनफॉर्चुनेटली हमारे यहां नहीं है। इसलिए क्या ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर कभी हमने देखा है कि किसी बंदे को हमने कहा है कि यार इसको कोर्स पे भिजवाएं, इसको साइकोलॉजिकल काउंसलिंग के लिए भिजवाएं, इसका अग्रेशन लेवल हाई है,
इसको ऑफिस के अंदर फिट होने में टाइम लग रहा है, मुश्किल पेश आ रही है, इसका इस लेवल को कम करने के लिए उसकी तरफ भिजवाया जाए। बड़ी मजे की बात बताऊं आपको, पाकिस्तान में कभी ये होता था जो आजकल नहीं हो रहा। छुट्टियों पे हम जाते नहीं है। अब एग्रेशन लेवल ऑफिस के अंदर इंक्रीज होने की एक बड़ी वजह सुने, हम छुट्टियों पे नहीं जाते। मैं किसी जगह पे पर्सनल मैनेजमेंट पढ़ रहा था, इफ योर एम्प्लॉय इज नॉट गोइंग ऑन लीव, सेंड हिम टू जेल, बिकॉज ही वुड अदरवाइज बिकम अ कॉज टू सेंडिंग यू जेल बाय डूइंग रॉन्ग थिंग्स। कसम से भिजवाएं लोगों को रिक्रिएशन के लिए, ओपन हो, एंजॉय करें ताकि आपका लेवल कम हो। कोई गेम खेलें, गेम्स एग्रेशन लेवल कम करने की कोशिश कर सकते हैं। बात पूरी सुने, ये नहीं कि जो बंदा बात कर रहा है आप उसकी बात को और उसकी शख्सियत को सिर्फ देखते हुए आप सोचे कि इसने यकीनन इसकी बात करनी है। बिफोर अंडरस्टैंडिंग हिम आप फौरी तौर पर आप जवाब देने की पोजीशन में आ जाते हैं। ये नॉर्मल बिहेवियर है हमारा। हमारा जवाब सवाल का नहीं होता, पर्सन का होता है। और मोस्ट ऑफ द टाइम इस किस्म की चीजें हमारे यहां पाई जाती है। हाउ टू कंट्रोल इट, हाउ टू ट्रेन एंड टेम आवरसेल्फ, कोर्सेस चलाने चाहिए। मैं समझता हूं कि बर्दाश्त को बढ़ाने के लिए जो कोर्स है वो हमारे करिकुलर के अंदर शामिल किया जाना चाहिए। एग्रेशन और साइकोलॉजिकल ये जो डिजीजेस हैं जो हमारी सोसाइटी में एक सोशल एनेथमा बनती जा रही है, इनके हवाले से हमारी बचपन से ट्रेनिंग इसके हवाले से होनी चाहिए। सोशल सर्विस को, लोगों की खिदमत को एसेंशियल किया जाना चाहिए, जैसे वेस्ट में है। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। मैं अब थोड़ा सा तसव्वुर तो करें ना कि यार कैसी सोसाइटीज दुनिया में जन्म ली हैं और उन्होंने कैसे इस स्टेज पे पहुंची हैं। मैं 2008 में यूके गया पोस्ट डॉक्टरेट के लिए, यूनिवर्सिटी ऑफ सरे। लंदन हीथ्रो एयरपोर्ट से उतरा, लॉन्ग फ्लाइट, एयरपोर्ट पे डिले बड़ा ज्यादा था यहाँ पीछे पाकिस्तान में। बड़ा थका हुआ, कोई 3 बजे 4 बजे आफ्टरनून का टाइम था। मैं एयरपोर्ट से बाहर निकला तो चूंकि मैं साल के लिए गया हुआ था वहां पर, तो आई हैड यू सी बैग्स विद मी, बड़े बैग। अब मैं बैग को खींचते हुए जा रहा हूँ, तो आगे गए तो एक छोटी सी बच्ची, मेरा ख्याल है आपसे भी कम एज की होगी, वो मेरे पास आई और उसने कहा मैं आई हेल्प यू। तो मुझे तो उस वक्त चाहिए थी हेल्प, क्योंकि मैंने जाना था गिलफोर्ड सरे जाना था, और एयरपोर्ट से गिलफोर्ड का रास्ता को घंटा 1.5 घंटे का है, बट यू हैव टू टेक 2 बसेस है ना। तो डायरेक्ट नहीं थी है सच, पहले वॉकिंग जाना होता था, वॉकिंग से फिर आपको नेक्स्ट मिलती, या फिर ट्रेन डायरेक्ट थी। अच्छा, वो रूट मैप दिया हुआ था उन्होंने मुझे, यूनिवर्सिटी वालों ने, कि आपने एयरपोर्ट हीथ्रो से आने का क्या तरीका है। तो मैंने उस बच्ची से कहा, मैंने कहा बेटा दिस इज वेयर आई हैव टू गो टू, because of jet lag I won't be able to figure it out that from where I will be getting this thing, so help me out on that। तो वो बच्ची देखा उसने, और फिर उसके बाद अपने तौर पर उसने मैप शैप जो उसके पास था उसमें देखा, उसने मुझे कहा कि ओके कम विद मी। उसने मेरा एक बैग ले लिया, अगरचे कि वो रेल कर रहा था, लेकिन फिर भी ऑफ कोर्स फॉर अ यंग किड बड़ा मुश्किल होता है बड़े से बैग को खींच के ले जाना। तो शी डिड नॉट अलाउ मी टू टेक। उन्होंने कहा आप ठीक है, आप एक अपना लेके आए, मैं दूसरा लेके जाता। वो मेरे साथ गई, फिर वो उसने ही मुझे 5 मिनट के वॉक के बाद जगह पे ले गई। वहां पे एक बर्थ थी जहाँ पे गाड़ी आके बस आके जैसे बस स्टैंड होता ना, उस जगह पे उसने मुझे रोका कि अभी यहाँ पे 5 मिनट के बाद, वो अपना शेड्यूल देख के उधर जो लगा हुआ था, 5 मिनट के बाद यहाँ पे बर्थ है, यहाँ पे गाड़ी आएगी, आपने उस गाड़ी से उतरना है, और उतरने के बाद आपने फलां स्ट्रीट के नाम फलां होगा, और आपको जो घर है जिसमें आपने जाना चाहते हैं वो राइट पे होगा या लेफ्ट पे होगा। वो मुझे बता रही थी। अच्छा, ये अच्छा खासा पेन था दैट शी टुक फॉर मी। तो अब वहां 5 मिनट चूंकि रहते थे, तो मैंने उस बच्ची से पूछा कि, मैंने कहा दिस इज यू सी समथिंग टोटली सेल्फलेस एंड यू हैव वेस्टेड योर टाइम एज वेल एज यू सी मनी। मोबाइल पे भी आपने चीजों को देखा, तो व्हाई डिड यू डू एनीथिंग लाइक दैट। तो उसने मुझे कहा कि सर एक्चुअली आई वाज ऑन सोशल वर्क और आई हैड टू डू सम सोशल वर्क टुडे। तो मैंने इसलिए आज एयरपोर्ट का इंतखाब किया था कि यहाँ पे बड़ा ज़्यादा लोग मिल जाते हैं जिनको हेल्प की ज़रूरत होती है, एंड फाइनली आई फाउंड यू, और मैंने आपको हेल्प आउट कर दिया। तो दैट वाज अ सॉर्ट ऑफ असाइनमेंट दैट आई वाज गिवन बाय माय कॉलेज। मैंने कहा तो अच्छा, ये तो बड़ी ज़बरदस्त बात है। तो फ्रॉम वेयर यू कमिंग, तो वो बता रही थी मैं फलां जगह से आ रहा हूँ। अच्छा, फॉर हीथ्रो एयरपोर्ट
काफ़ी दूर है शायद लंदन सिटी से। तो वो उसने बताया कि मैं फलां जगह से, वो उसका आने का भी फासला घंटे का होगा। बेटा, यू कुड हैव डन दिस थिंग बाय सिटिंग इन योर होम बाय राइटिंग समथिंग वेरी, यू कैन कंकॉक्ट इट बाय योरसेल्फ। स्टोरी को ऐसे बता देती ना कि आई वेंट टू एयरपोर्ट टेकिंग दिस बर्ड एंड दैट बस एंड देयर आई फाउंड अ एशियन एंड ही हैड 2 बैग्स। जिस आप सिचुएशन थी वो आप इसको ऐसे ही कंसेप्चुअलाइज कर लेती और डाल देती। यू वुड नॉट हैव डन दिस, यू हैड नॉट गॉन थ्रू दिस पेन। तो उसका जवाब बड़ा इंपॉर्टेंट था। उसका जवाब ये था कि सर, हाउ कुड आई डू एनीथिंग दैट आई हैवंट डन, है ना, हाउ कुड आई डू एनीथिंग दैट आई हैवंट डन। यानी उनके दिमाग में ये बात नहीं समझ आ रही उसको कि मैंने जो काम नहीं किया झूठ कैसे लिख सकते हूं, झूठ कैसे लिख सकते हूं। ये कैसे ट्रेनिंग मिली, इस किस्म के सोशल वर्क से मिली। ट्रेन किया जा रहा है उसको स्कूल में, उससे पीछे भी किया जा रहा था, कॉलेज में होती है उससे पीछे भी किया जा रहा था। यहां पे मैं समझता हूं कि हमारे बच्चों की ट्रेनिंग का कोई मैकेनिज्म नहीं है, where we have to teach them that how to be tolerant, how to accept other, how to accept differing ideas, how to accept something that you don't like. हमारा फौरन ऐसे बिहेवियर जो है ना वो रिबटल का हो जाता है, फौरी तौर पर रिएक्ट करने वाला जो बिहेवियर है, कैसे इसको चेंज करेंगे। इसके लिए ट्रेनिंग जरूरत है। क्या हमारे यहां किसी इंस्टीट्यूशन, गवर्नमेंट सरकारी इदारों की बात कर रहा हूं, क्या ऐसी जगह पे कोई ऐसे कैरियर काउंसलिंग बैठे हुए हैं, कोई ऐसे साइकोलॉजिकल काउंसलिंग के ऑफिस बने हुए हैं, कोई ऐसा डिपार्टमेंट मौजूद है जहां पे हम कहें कि यार ये मेरा एम्प्लॉय इस वक्त सफोकेटेड है, फ्रस्ट्रेटेड है, देयर आर सर्टेन प्रॉब्लम्स डोमेस्टिकली, सोशली और दिस काइंड ऑफ थिंग्स, दिस ही हैज टू बी सेंट फॉर सम काइंड ऑफ काउंसलिंग। हमें यहाँ तो हमारे नफ्सियात के पास जाना अपने आप को मुश्किल समझेगी, ये तो नफ्सियाती मरीज है, हमारे लिए बहुत बड़ी गाली है ये। तो ये मैं समझता हूं कि हमारे यहाँ इस किस्म की चीजों को टीच करने की जरूरत है, प्राइमरी लेवल से इसको टीच करने की जरूरत है, ताकि जब इस जगह तक हम पहुंचे जहां पे हम एक बड़े, जिसे आप कह सकते हैं ना कि नट बन चुके होते हैं, जहां पे हमारे लिए बड़ा मुश्किल होता है किसी भी ऐसी चीज को अपने अंदर ट्रांसफॉर्म करना, अपने अंदर चेंज लेके आना, उससे पहले बड़ी नीचे लेवल पे चेंजेस की जरूरत है। Thank you very much for asking this question to us twice, because somebody has already asked about it. Sir. Sir. Yeah. जो एक टर्म चल रही है फिफ्थ जनरेशन वॉर जो है, yeah. और इसी में ही एक टर्म यूज होती है प्रोपेगेंडा, yeah. जिसको बताया जाता है कि इतने तौर से बोलें झूठ कि उस सच का गुमान हो। अब ऐसे चैनल्स, जैसे आप कह रहे हैं कि लर्निंग होनी चाहिए, एजुकेशन होनी चाहिए, सोफिस्टिकेशन होनी चाहिए, लाइक दैट, हम कोई भी टीवी चैनल ओपन करते, लाइक आई लाइक स्कैरी मूवीज और जो है इस टाइप की जो मूवीज पसंद करता हूँ। इन चैनल्स में ड्रामास के अलावा हमारी ट्रेडिशन से हट के जो चीज़ें होती हैं जिसको हाईलाइट की जाती हैं, वो हमारे इस्लामिक कॉन्सेप्ट से भी डिफरेंट है और हमारे ओवरऑल कल्चर से भी डिविएट करती है। कौन करता है? एक बात, ओवरऑल जैसे हमें बताया जाता है कि पूरी दुनिया का मीडिया ज्यूइश इसको कंट्रोल करता है। एम आई राइट कि हमारा इनडायरेक्टली मीडिया भी वही कंट्रोल किया जाता है? एब्सोल्युटली। ठीक, हम ट्रेडिशंस की बात करते हैं, सोफिस्टिकेशन की बात करते हैं, मैनर्स की बात कर रहे हैं, कहाँ से हासिल करें? आप टीवी ओपन करते हैं, प्रोफेनिटी, आप चैनल्स यूज करते हैं, ऑल बुलशिट। कभी कोई बंदा मुंह में शीशा डाल रहा होता है फेम हासिल करने के लिए, किसी ने अपनी रैट रेस की होती है। मेरी कुछ हम्बल सी सजेशंस हैं, वो ये चीज़ है कि हम पहले मैनरिज्म, एक टॉलरेंस रेट अपने मातहतों के जरिए जो हमने इस चीज़ को प्रैक्टिकल करना है इस चीज़ के बारे में। अब जो रेट जो एक चल रही है, जियो की अलहदा है, ARY की अलहदा है। जैसे आपने 18th अमेंडमेंट की बात की कि फलाने का छोटा सा क्लिप चल गया, उसकी रेटिंग बढ़ गई। सोशल मीडिया पे आए तो भांत भांत के लोग नज़र आते हैं, चैनल्स नज़र आते हैं,
क्या इनको फिल्टर करके एक ही प्लेटफॉर्म पे नहीं लेके आया जा सकता, ताकि एक ओवरऑल एजुकेशन और एक मैसेज हमें कन्वे हो? दूसरी बात जो एक मेरी हम्बल एक सबमिशन है, गलत भी हो सकती है, एक टॉलरेंस लेवल को एक स्ट्रीमलाइन करने के लिए अगर मैं कहूँ कि माय नेम इज वजाहत अली, दूसरी सेंस में कहूँ माय नेम इज वजाहत अली शेख, क्या चीज़ जो एक कास्ट लगी थी हाशिया तो मैंने खत्म कर दिया? क्यों? आई डिसलाइक इट। आई फील प्राउड टू बी अ पाकिस्तानी, आई फील प्राउड टू बी अ मुस्लिम। तो ये हम अपनी ज़ात से क्यों नहीं स्टार्ट कर सकते? छोटी छोटी सी चीज़ें हैं, बजाय कि हम बड़ी चीज़ों में आए, चंक्स में आए, छोटी चीज़ों में आए, उसके फ्रूट्स भी बहुत ज़्यादा। व्हाट डू यू थिंक अबाउट दैट? सर आपने बहुत सारी बातें कही हैं और सवाल नहीं बल्कि कमेंट्स थे, उन कमेंट्स पे ही एक जैसा कमेंट ऑन कमेंट की बात कर रहा हूँ कि देखिए ये 5th जनरेशन वॉरफेयर है, ये मॉडर्न डेज वॉरफेयर है और इसको समझना, इसकी जो इंट्रिकेसीज हैं, कॉम्प्लेक्सिटीज हैं, उसको अंडरस्टैंड करना, what could be the possible tools through which the social media or the other media are being used as a weapon of you see mind destruction जो दुनिया इस्तेमाल कर रही है, उसके हवाले से क्या इंट्रिकेसीज हैं उनकी, उनको समझना, और फिर हमारे फॉल्ट लाइंस क्या हैं जिनको दुनिया एक्चुअली एक्सप्लॉइट करती है। वही जो चंदे की तरफ आपने इशारा किया, हमारे पॉलिटिकल फॉल्ट लाइंस हैं, हमारे रिलीजियस फॉल्ट लाइंस हैं, हमारे लिंग्विस्टिक्स फॉल्ट लाइंस हैं, हमारे इंस्टीट्यूशनल फॉल्ट लाइंस हैं, जिनको क्या करते हैं, आपने किसी एक मौलवी को किसी एक जगह मार दिया तो फिर उसके बाद देखें बाकी किस तरह से काम करते हैं। किसी एक कम्युनिटी के बंदे को आपने किसी जगह पे इनह्यूमनली डील कर लिया तो बाकियों के साथ क्या हो सकता है ना। हम चूंकि इतने ज्यादा इंटॉलरेंट हो चुके हैं, डिवाइडेड हो चुके हैं, जिसकी वजह से अब दुनिया के लिए बड़ा आसान है कि हमारे इस किस्म के फॉल्ट लाइंस को हिट करना और उनकी चीजों को एक्सप्लॉइट करना। वो जिसे अजीत देओल का जो कॉन्सेप्ट है ना कि पाकिस्तान के अंदर तो मसला ही कोई नहीं है प्रॉब्लम क्रिएट करना, पूरे मुल्क में चंद दिनों में हम आग लगा दें, सिर्फ और सिर्फ हमने क्या करना है, को फतवा दे देना है किन्हीं चीजों के खिलाफ है। तो ये जिसे आप कह सकते हैं ना 5th जनरेशन वॉरफेयर, एक्चुअली हाइब्रिड वॉरफेयर और 5th जनरेशन वॉर की बड़ा थोड़ा डिफरेंस है। ये सारी साइकोलॉजिकल वॉरफेयर है, प्रोपेगेंडा के थ्रू वॉरफेयर होती है, आपको किसी एक खास लाइन पे रखा जाता है, पूरी सोसाइटी को किसी एक खास लाइन पे रखा जाता है और उसके अंदर सारे के सारे सबवर्सिव मींस इस्तेमाल किए जाते हैं ना। हाइब्रिड वॉरफेयर ये होते हैं कि सबवर्सिव नहीं इस्तेमाल किए जाते, उसके साथ साथ काइनेटिक मींस भी इस्तेमाल किए जाते हैं, जिसमें क्या होता है कि बम ब्लास्ट और ये चीजें भी सारी शामिल होती हैं। एक सिर्फ प्रोपेगेंडा यानी 5th जनरेशन वॉरफेयर सिर्फ डिसइंफॉर्मेशन और प्रोपेगेंडा पे बेस करते हुए चीजें को लेके आगे बढ़ी होती है और जिसमें ये सारे चैनल्स इस्तेमाल हो रहे हैं पाकिस्तान के अंदर, बड़े एक्सेसिवली इस्तेमाल हो रहे हैं। आई सेकंड योर ओपिनियन। और इसके अंदर जो आपने बात की है कि क्या हमारे मीडिया, एज आई हैड सेड अर्लियर दैट मीडिया Jewish, so are there any possibilities? Is there any possibility that some of media operating in Pakistan are being sponsored by those? You don't know them honestly, because there is a huge funding that is coming to them. Narratives कैसे built up हो रहे हैं, उन narratives को built up करने में इनका क्या रोल है, who is sponsoring those narratives there? तो मेरे ख्याल के मुताबिक इसके लिए बाकायदा इन्वेस्टिगेशन की जरूरत है और इस चीज को फाइंड आउट करने की जरूरत है। जरूरी नहीं है कि सम Jewish with his David और पीटर और इस किस्म के नाम से आएगा तो आपको पता चलेगा कि कोई है। Maybe someone from our own society, maybe living in somewhere abroad, having ये इस किस्म के जो है ना मुख्तलिफ गॉब्स के अंदर इन चीज़ों को स्पॉन्सर या इस चीज़ों को सपोर्ट किया जा रहा होता है। बट अनफॉर्चुनेटली उस पर हमें हमारे गवर्नमेंट को, हमारे एजेंसीज को विजिलेंट होने की जरूरत है। अगली बात जो आपने कही है ना कि इंडिविजुअल हेल्प, सर देखें, आई एग्री ऑन दिस पॉइंट दैट देयर इज अ नीड to have some kind of vigilance on part of every individual to decide to play up those things which are positive in nature instead of creating some kind of divides by showing yourself belonging to some particular clan, है ना, किसी क्लैन से आप हैं उसको आप हाईलाइट कर रहे हो, पाकिस्तानियत को फरोग करने की जरूरत है। But you see, an intelligent man, the one who has in fact you see very soft heart towards
सोसाइटी, आप तो शायद ये सोच सकते हैं, लेकिन एवरीबॉडी कांट थिंक लाइक दैट। इसके लिए तो बाकायदा इंस्टीट्यूशनल ट्रेनिंग का इंतजाम होना चाहिए, हमारे करिकुलम के अंदर इसके कोई हिस्से होने चाहिए, हमारे अंदर कोई सोशल ट्रेनिंग का कोई मैकेनिज्म होना चाहिए, जो नहीं है अनफॉर्चुनेटली। मैं कह रहा हूं कि आप सोसाइटी की जब रिफॉर्मेशन की बात करते हैं तो फिर सम काइंड ऑफ इंस्टीट्यूशनल एफर्ट्स आर ऑल द वे इनएविटेबल। वो हमें हर हालत में करना पड़ेंगे, करना सोचना पड़ेगा, ताकि हमारे अंदर ये इस किस्म के डिफरेंसेस जो है ना वो मिनिमाइज्ड हो सके। आई डोंट से दैट दे वुड बी ऑल टुगेदर ओवर, no society is in fact free from these kind of social troubles. Every society has different nature and different kinds of troubles, but you see societies try to control those troubles so that they should not be able to go beyond their control and become, you see, a disaster. हमारे यहाँ अनफॉर्चुनेटली है कि कोई इस किस्म के मैकेनिज्म ना होने की वजह से वो डिजास्टर बन जाते हैं। कभी ये लिंग्विस्टिक्स की उर्दू है और ये सिंधी है, कभी ये क्या पश्तून है और पंजाबी है, बलूचिस्तान में ये सेटलर्स हैं और बलोच हैं। You see, this is too easy to infuriate those differences, what I used to call them as fault lines. उनको एक्सप्लॉइट करना और उनकी बुनियादों पे चीज़ों को और सोसाइटी को पूरा खोखला करना बहुत आसान हो जाता है। तो हमें इस किस्म की इंस्टीट्यूशनल चीज़ों को अब जरूरत है, क्योंकि मर्ज बहुत बढ़ चुका है। It's no more that one individual, I mean, if I feel that something should be taken it that way, then I start doing it. It is the whole society know it has to take things in a different way. And societies जो चीज़ें हैं ना उसके लिए फिर उस किस्म के मेगा लेवल, जाइगेंटिक लेवल हमें एफर्ट्स को इन्वॉल्व करने की जरूरत है। With all, thank you very much. आप सबका बेहद शुक्रिया, और मैम स्पेशली आपका, because you have given me an opportunity to interact with this brilliant minds, माशाल्लाह। और वर्चुअल यूनिवर्सिटी का आपका सबका बेहद शुक्रिया। एंड दोज हु कुड नॉट आस्क क्वेश्चन, मैं उनके लिए माज़रत तलब करता हूँ, और सबसे माज़रत तलब इस लिहाज से करता हूँ कि यू हैव बीन सो पेशेंट ऑनेस्टली। थैंक यू वेरी मच। Thank you, sir. It was really an informative and comprehensive session. We have our controller examination, Dr. Faisal Tahsin Shah. Thank you, sir, for coming. Please, all of you, join us for group photo and lunch. Haji, for online participants, it is an announcement to join us at sharp 2:15 p.m. Thank you.